السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 19 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ، آیت 101 ٹو 112۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جسے یہ پسند ہو کہ وہ ہر روز بتہان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بڑی بڑی کوہان والی 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور اسے اس میں سے کوئی گناہ لازم نہ ہو، نہ قطع رحمی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب یہ پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی مسجد کو نہیں چاہتا کہ اللہ کی 2 آیتیں سیکھے یا پڑھے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ 3 آیتیں ہوں تو 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور 4 آیتیں ہوں تو 4 سے بہتر ہے۔ الحمدللہ۔ تو جو بھی قرآن کریم کی آیت اکٹھا ہو کر سیکھتے ہیں۔ مساجد کیا ہے؟ مسجد کے معنی ہوتے ہیں سجدہ کرنے والی جگہ۔ اب خواتین تو مسجد نہیں جا سکتی ہیں نا، خواتین کو بھی علم حاصل کرنا ہے تو وہ ایک ادارے سے جڑتی ہیں، ایک گروپ سے جڑتی ہیں، ایک جماعت سے جڑتی ہیں، ایک انسٹیٹیوٹ سے جڑتی ہیں، تو اکٹھے ہو کر وہ پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، تو ایک ایک 2 2 آیتیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کے اجر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے نا، اور یہ ترمذی کی حدیث بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ ایک آیت سیکھنے کا ثواب یا 2 آیت سیکھنے کا ثواب کیا ہے کہ جس نے 2 2 اونٹنیاں لے کر وہ آئے، اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 101۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا اور ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا وہ جانتے نہ تھے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کے پاس آیا، یعنی ان کے پاس سے مراد بنی اسرائیل ہے، تو ہمیشہ ان کا یہی رویہ تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا کہ ان کو بھی بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیا تھا، انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے، اور ہمیشہ لوگوں میں یا قوم میں کچھ اچھے فرقے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے فرقے ہوتے ہیں، اور کچھ بہت زیادہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا، اور وہ گویا کہ ایسے ڈالا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی آیات بھی، بینات بھی عطا فرمائی، جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن ان کو جو کتاب اور تورات دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نشانیاں بھی اور اس کی صفات بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور صفات سب کچھ موجود تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بجائے ان کا انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے عہد بھی کیا تھا نا۔ وہی آیتیں ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور اس دوبارہ وہی دوہرا کے قرآن کریم میں آیتیں آتی ہیں، لیکن انہوں نے اس عہد کو بھی پرواہ نہیں کی، یعنی کہ جو ان سے عہد لیا گیا تھا نا، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ جب کبھی میرا جو رسول تمہارے پاس کوئی آئے تم اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، تو انہوں نے کہا تھا ہاں اللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی کریں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کبھی پاس نہیں رکھا، نہ انہوں نے عہد کو پورا کیا، نہ اپنی کتابوں میں جو اوصاف لکھے ہوئے تھے اس پر ایمان لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور نہ انہوں نے کھلی کھلی نشانیاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں عنایت دی تھی نا، نوازا تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ ایسے ایسے سوالات کے جواب دے دیتے تھے کہ کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ بڑے بڑے اس وقت کے جو اسکالر، یعنی کہ اس زمانے میں جیسے بڑے بڑے آج کے جو تاریخ میں جو بھی بڑے اسکالر ہوتے ہیں ہر زمانے میں، تو ان کے ٹائم میں بھی جو یہود کے جو علماء تھے، عالم تھے، وہ بھی حیران ہو جاتے تھے، ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی، اور انہوں نے اپنی کتاب کو بھی پیچھے ڈال دیا، کتاب کے احکامات کو بھی نہیں مانا۔ کتاب میں احکامات ہی یہی دیا تھا، ان کو حکم یہی دیا گیا تھا کہ جو نبی آئے اس کے بعد تمہیں ان کی اتباع کرنی، ان کی تصدیق کرنی ہے، ان پر ایمان لانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اس میں باتیں موجود تھیں۔ آیت 102۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। और उस चीज़ के पीछे लग गए जिससे शैतान हज़रत सुलेमान की हुकूमत में पड़े थे। सुलेमान ने कुफ्र ना किया था, बल्कि ये कुफ्र शैतान का था। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। और बाबील में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर जो उतारा गया था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक़्त तक नहीं सिखाते थे, जब तक ये ना कह दे कि हम तो एक आज़माइश है, तो कुफ्र ना करो। फिर वो फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी में जुदाई डाल दी जाए। और दरअसल वो बगैर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुँचाने और नफ़ा ना पहुँचा सके। वो जानते हैं उसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है और वो बदतरीन चीज़ है जिसके बदले वो अपने आप को फ़रोख्त कर रहे हैं। काश ये जानते होते। इन यहूदियों ने अल्लाह तबारक तआला की किताब को पसे पुश्त डाला और उन चीज़ों के पीछे लग गए जो बहुत आसान होती थी और आसानी से हासिल हो जाए और भले वो आखिरत बर्बाद हो जाए। दरअसल इन्होंने जादू को इख्तियार कर रखा था। जादू के बल पर ये दुनिया हासिल करना चाहते थे और इनका आखिरत पे यकीन ही नहीं था। आखिरत तबाह हो तो हो। और दरअसल इन यहूदियों ने अंबिया को बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया। अंबिया को इन्होंने नाहक कत्ल किया। अंबिया पर इन्होंने कई बार जान से मारने की कोशिशें भी की और दरअसल इन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में भी गलत बातें फैला रखी थी। वो ये कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो बादशाहत की, जो कई साल उन्होंने ज़बरदस्त जो उनकी बादशाहत थी, वो जादू के बल पर की थी ना। आपको पता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो बादशाहत थी, तो वो उनकी बादशाहत में ऐसी बादशाहत अल्लाह से उन्होंने दुआ करके मांगी थी कि ऐसी बादशाह अल्लाह ताला हमको ऐसी बादशाहत दीजिए कि ऐसी बादशाहत किसी की ना हो। तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको ऐसी बादशाहत से सरफराज फरमाया कि ऐसी बादशाहत किसी की नहीं। उनकी बादशाहत में चरिंद परिंद इंसान और जिन्नात सब उनके अंडर में थे, उनके जो काबू में थे, सब पर उन्होंने हुकूमत की। तो अल्लाह तबारक तआला से उन्होंने दुआ की और अल्लाह ताला अपने अंबिया की दुआ कबूल फरमाते हैं। तो इन यहूदियों ने ये बात फैला रखी थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो भी इतने साल बादशाहत की, तो वो जादू के बल पर की और सब गलत बात उनके बारे में फैला के सुलेमान अलैहिस्सलाम को बदनाम कर रखा था। तो इस आयत में अल्लाह तबारक तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में फरमा रहे हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, कोई कुफ्र नहीं किया, कोई जादू नहीं किया और वो तो क्या थे? वो तो अंबिया थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं थे। जादू तो दरअसल शैतानों का काम है ना। जादू में क्या होता है, शैतान की पनाह माँगी जाती है, शैतानी की इबादत की जाती है। नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, वो तो जादू के सवाल ही नहीं उठता। वो उनको तो अल्लाह तबारक तआला ने ये सब मुआजिज़ात दिए थे। अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं कुफ्र किया, बल्कि कुफ्र तो ये शैतानों का था और वो लोगों को जादू सिखाया करते थे। तो दरअसल इन यहूदियों ने अल्लाह की किताब और उसके अहद की कोई परवाह नहीं की। अलबत्ता शैतान के पीछे लगकर न सिर्फ जादू टोने पर अमल करते रहे, बल्कि ये दावा भी किया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के पैगंबर नहीं थे, बल्कि एक जादूगर थे और जादू के ज़ोर से ही वो इतने साल हुकूमत करते रहे। अल्लाह ताला ने फरमाया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू का अमल नहीं करते थे, क्योंकि अमल सहर तो कुफ्र है। इस कुफ्र का इर्तिकाब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसे कर सकते हैं? कहते हैं कि ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का सिलसिला बहुत आम हो गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसके सद्दबाब के लिए जादू की किताबें लेकर अपनी कुर्सी या तख्त के नीचे दफन कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद इन शयातीन और जादूगरों ने इन किताबों को निकाल कर न सिर्फ लोगों को बहकाया, बल्कि लोगों को ये भी जो है बावर कराया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की क़ुव्वत और ताकत और इक़्तिदार का जो वजह थी, ये जादू का अमल था। यानी कि उनको इतनी ज़्यादा क़ुव्वत और ताकत और इतनी बादशाहत जो मिली इसी वजह से, क्योंकि वो जादूगर थे। इसी बिना पर इन ज़ालिमों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी काफ़िर करार दिया, जिसकी तरदीद, जिसका रद्द अल्लाह तबारक तआला ने इस आयत में फरमाया है। अल्लाह तबारक तआला ने जो बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्ते थे, वो अल्लाह ताला ने लोगों की आज़माइश के लिए भेजा। यानी उस वक़्त जादू इस कदर आम हो गया था और अल्लाह तबारक तआला लोगों को जो है इस तरह से समझाना चाहते थे, बताना चाहते थे कि ये जादू क्या है, दरअसल ये एक कुफ़्र है। और ये हारूत और मारूत 2 फरिश्ते जो बाबुल में आए थे, वो इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने भेजा था ताकि ये लोगों को समझाएँ कि जादू क्या है, जादू बहुत बुरी चीज़ है। जादू की पनाह में ना इंसान आए और वो मुअज़्ज़ात पर यकीन रखे, वो अल्लाह पर यकीन रखे। तो लोगों को समझाने के तौर पर और लोगों की आज़माइश के तौर पर अल्लाह तबारक तआला ने बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत को भेजा था। हारूत और मारूत फरिश्तों पर जादू का इल्म नाज़िल फरमाया और इस मकसद कि ये मालूम होता है ताकि वो लोगों को ये बताएँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों पर जो ज़ाहिर शुदा चीज़ें थी, वो मुअज्जज़ात थे, वो जादू नहीं थे। जादू तो मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे जादू ये है कि जिसका इल्म अल्लाह ताला की तरफ से हमें किया गया है। उस दौर में जादू आम होने की वजह से लोग अंबिया को भी नाउज़ुबिल्लाह जादूगर और शोबदाबाज़ी समझने लगते थे ना। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इन दोनों फरिश्तों को भेजा ताकि ये वाज़ेह हो जाए कि जो फरिश्ते मतलब कि वो एक ऐसे जादूगर बन के आए थे, जैसे कि वो लोगों को समझा सके कि ये जादूगर हैं और ये जादू सिखा रहे हैं। तो वाज़ेह हो जाए जादू और मुआज़ज़े के बीच, लोगों को फ़र्क समझ में आ जाए। और इन फरिश्तों को भेजने का दूसरा मकसद ये भी था कि बनो इसराइल की गिरावट, अखलाकी गिरावट की निशानदेही मालूम होती है कि बनी इसराइल किस तरह जादू सीखने के लिए इन फरिश्तों के पीछे पड़े और ये बतलाने के बावजूद कि जादू कुफ्र है।
हम तो हमारी आजमाइश के लिए आए हैं। ये इल्म वो सहर हासिल करने के लिए ये टोने टोटके जो कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों का घर को उजाड़ना, हँसते और खेलते घरों को उजाड़ देना, बर्बाद कर देना, लोगों के बीच में नफ़रत डालना और उन फरिश्तों को ये भी कहते थे कि हम तो तुम्हारी आजमाइश है। उसके बावजूद ये जादू करते थे और सीखते थे और लोगों के घर तोड़ देते थे। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इन 2 फरिश्तों हारूत और मारूत को बाबुल में भेजा था ताकि लोगों को समझा सके और लोगों के बीच वाज़ेह कर सके कि अल्लाह ताला ने जो अंबिया को दिया, वो जादू नहीं था, वो मुअज्ज़ात थे और जादू और मुअज्ज़ात के बीच लोगों को फ़र्क समझ में आ जाए और ये भी बताना मकसूद था कि जादू दरअसल क्या है? कुफ़्र है, कबीरा गुनाह है। जादूगर कभी फलाह नहीं पाते हैं और जादू के बारे में लोगों को इल्म हासिल हो जाए कि जादू दरअसल क्या है? ये एक कुफ़राना चीज़ है, कुफ़्र की चीज़ है और लोग जो अंबिया अल्लाह तबारक तआला ने जो लोग अंबिया अलैहिस्सलाम को जो मुअज्ज़ात दिए, वो वाज़िह हो जाएँ। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, तो यहूदी जानते पहचानने के बावजूद हसद और इनाद की बिना पर आपकी पैरवी से इनकार किया। मैदान में वो आपका मुकाबला नहीं कर सके क्योंकि हक पर होने का अकीदा वो अमल ही क़ुव्वत की बुनियाद है जिससे उनके हाथ खाली थे। चुनांचे वो हर उस कौम की तरह जो अकीदे और अमल की क़ुव्वत से खाली होती है, जादू, टोने और अमलियात के पीछे पड़ गए और ऐसी तदबीर ढूंढने लगे जिनसे किसी मशक्क़त और जद्दोजहद के बगैर सारे काम बन जाया करे। और जब बस ना चला तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। ये जादू करने वाला लबीद बिन आसम यहूद था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और उससे निकलने वाले बालों और उसने एक नर खजूर के खोशे के गिलाफ में रखे थे। उसने जादू किया इस तरह से और उसी से जी अरवा नामी कुएं की तह में एक बड़ी पत्थर के नीचे दबा दिया। यानी इस तरह से उसने ये जादू किया, फिर वो चीजें जाकर उसने कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबा दिया। उसका असर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये हुआ कि आपको ये ख्याल होता कि आप अपने अहल के पास जाते हैं मगर जा नहीं सकते थे। आपने बार-बार अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने आपको वही के ज़रिए से मुत्तले फरमाया यानी कि खबर दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया है। तो आपने वो सब कुछ निकाल कर ख़त्म करवाया और कुएँ भी जो कुएँ में दफ़न हुआ था वो सब निकाल कर उसे ख़त्म करवा दिया और अल्लाह ताला ने आपको शिफ़ाए कामिला अता फरमाई। ये बुखारी की हदीस 2189 में इसकी तवील हदीस है। वमा कफ़रू सुलेमान यहूद ने मशहूर कर रखा था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम नऊज़ुबिल्लाह जादूगर थे और उनकी जो हुकूमत का दारोमदार जादू पर था। तो अल्लाह ताला ने उसकी तरतीब फरमाई और बताया कि जादू तो कुफ्र है। सुलेमान अलैहिस्सलाम साहिब मुअज़्ज़ज़ पैगंबर थे। उन्होंने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतान ने उनके अहद में कुफ्र का ये काम किया था। वो खुद भी जादू करते थे और लोगों को भी जादू सिखाते थे। यहूद एक तो इस इल्म सहर के पीछे लग गए और एक उस इल्म के पीछे लग गए कि जो बाबुल के 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था। जो सहर से अलग एक इल्म था और जिसे अमल में लाना बाज़ औक़ात कुफ्र भी था। वो फरिश्ते किसी को भी वो इल्म नहीं सिखाते थे जब तक कि इसे अच्छी तरह आगाह ना कर दें कि हम तो महज़ एक आज़माइश है, लिहाज़ा तुम इस अमल को कुफ्र के लिए इस्तेमाल ना करो। मगर यहूद की इख़लाक़ी पस्ती का ये हाल था कि वो उनसे इल्म ज़रूर सीखते और उसमें से भी वो बात सीखते जो सरासर नुकसान पहुँचाने वाली और जिन्हें वो अमल में लाना कुफ्र है और जिन पर शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है। यानी ऐसे अमलियात जिनसे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते। फरिश्तों का आज़माइश के लिए भेजना कुछ ताज्जुब की बात नहीं। अफ़सोस है कि मुसलमान भी जब पस्ती का शिकार हुए तो जादू के पीछे पड़ गए कि वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान और उन्होंने उसकी पैरवी की जिसे सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में पढ़ा करते थे कि शयातीन आसमान पर चले जाते थे और वहाँ यानी कि ये बुखारी की तवील हदीस में से एक हदीस है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अगर इस आयत को हमें समझना है तो हम इसको ज़रूर समझें कि वत्तबअू मा ततलु शयातीन अला मुल्की सुलेमान। तो शयातीन जो है वो आसमान पर चले जाते थे और वहाँ सुनने के लिए घात लगाकर बैठ जाया करते थे और फरिश्तों की बातें सुनकर ये मालूम कर लेते कि ज़मीन में किसकी मौत वाक़ई होने वाली है और कौन गैब की कौन सी बातें होने वाली हैं। फरिश्तों से सुनी हुई बातों से काहिनों को मुत्तला कर देते थे और काहिन वो बातें लोगों को बता देते थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को भी कुछ ऐसी कुव्वतें दी है ना कि वो आसमानों तक चले जाते हैं और आसमानों के तक जाके करीब-करीब से बिल्कुल हो जाते हैं और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का कोई हुक्म नाज़िल होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फरिश्तों को कोई हुक्म देते हैं, तो उस वक़्त फरिश्ते थर-थर काँपने लगते हैं अल्लाह के हुक्म सुन के। इतना ज़्यादा उनके अंदर खौफ और खशियत इलाही होती है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हुक्म फरमा चुकते हैं, तब वो उस खौफ से बाहर आते हैं फरिश्ते, तब वो आपस में कहते हैं कि अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? तो आपस में वो एक-दूसरे को बात बताते हैं। तो ये जो बात बताने का जो ये दरमियानी वक़्त है, इस बताने में ही जो नीचे से शैतान कान लगा के सुन रहे होते हैं आसमानों के ऊपर, तो उसमें से वो कोई एक बात सुन लेते हैं। और फिर वो शैतान चढ़ते भी कैसे हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक शैतान। इस तरह से वो एक-दूसरे के ज़रिए से, एक कतार के ज़रिए से वो ऊपर दूसरे की बात जाके, फरिश्तों की बात जाके वो सुनते हैं। और जब वो बात ऐसी सुन के आ जाते हैं, तो वो जादूगर या ना काहिन को इत्तला कर देते हैं और काहिन यानी जादूगर वो बातें लोगों को बता देते हैं।
और लोग देखें कि वो बात इस तरह पूरी हो जाती है जिस तरह काहिनों ने उन्हें बताई भी थी। तो काहिनों ने लोगों को अपने एतमाद में लाने के लिए फिर उनसे झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। शैतानों ने सुनी हुई एक बात में 70 बातें झूठ मिलाकर अपनी तरफ से लोगों को बताना शुरू कर दी। यानी कि जो काहिन होता है और शैतान होते हैं, एक बात तो सही सुनते हैं, लेकिन उसके साथ 70 जो बात होती है, 100 जो बात होती है, वो झूठ होता है। 100 बात बताई, उसमें से कोई एक सच होगी। तो शैतान काहिन को इसी तरह बताता है और काहिन लोगों को इसी तरह बताता है। और एक जो बात सच हो जाती है तो लोगों को अकीदा हो जाता है। लोगों ने उनकी बातों को अपनी किताबों में लिखना शुरू कर दिया और बनी इसराइल में भी ये बात मशहूर हो गई कि जिन इल्म गैब जानते हैं, यानी जिन्नात को गैब का इल्म है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के पास अपने आदमी भेजकर उन तमाम किताबों को जमा करा लिया था। यानी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इसकी बात पता चली कि ये लोगों में मशहूर हो गई है ये बात कि जिन्हों को गैब का इल्म है, तो एक रसूल को ये चीज नहीं समझ में आती ना। रसूल तो किस चीज की बात पहुंचाने लाया है? अल्लाह की, एक अल्लाह की इबादत की। लेकिन जब अल्लाह को छोड़कर लोग जिनों की इबादत करने लगे और अल्लाह के अलावा कोई गैब का इल्म नहीं जानता है, लेकिन उनके वक्त में क्या मशहूर हो गया? जिन गैब का इल्म जानते हैं। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लोगों के पास अपने आदमियों को भेजकर उन तमाम किताबों को जमा कर लिया जिसमें वो गलत बातें लिखी थी, और उन्होंने एक संदूक में डाल दिया और इस संदूक को अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया। जो शैतान भी आपकी कुर्सी के करीब आता था वो जल कर राख हो जाता था। आपने फरमाया कि अगर मैंने किसी को ये कहते हुए सुना कि शैतान गैब का इल्म जानते हैं, यानी जिन गैब का इल्म जानते हैं, तो मैं उसकी गर्दन काट डालूंगा। इतना बड़ा सख्त आप जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था। और आपको ये भी पता है ना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे और उन्होंने अल्लाह से दुआ भी की थी कि अल्लाह ताला मुझे ऐसी सल्तनत दे कि मेरी बाद ऐसी किसी की सल्तनत ना हो। तो आपकी सल्तनत में चिड़िया, परिंदे और हर यानी कि चरिंद परिंद, जिन्नात और इंसान सारे के सारे उनके ताबे थे। सारे लोग उनके अंडर में थे, यानी कि उनकी जो है जो बादशाह थी सब पर गालिब थी। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौत हो गए, खत्म हो गए, यानी वो दुनिया से इस दुनिया से चले गए और वो उलमा भी चले गए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानते थे, और फिर उनके जो नाखलफ पैदा हुए, तो शैतान इंसान की सूरत में बनी इसराइल की एक जमात के पास आया और कहने लगा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा खजाना ना दूं, ऐसा खजाना ना बताऊं जिसे तुम कभी भी खत्म ना कर सकोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ जरूर बताइए। शैतान ने कहा कि कुर्सी के नीचे की जगह खोदो। शैतान ने उनके साथ गया और उसने उन्हें वो जगह भी दिखा दी, यानी कि उनको वो जगह भी नहीं बताती, तो वो जगह भी उसने बताई और वो इशारा किया कि इस जगह को खोदो, और खुद दूर जाकर बैठकर तमाशा देखने लगा। उन लोगों ने कहा कि करीब तो आइए, तो उसने कहा कि नहीं, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही मौजूद हूँ, अगर तुम्हें यहाँ से ना मिले तो बेशक तुम मुझे कत्ल कर देना। दरअसल शैतान जब इंसान की शक्ल में तो आ गया, लेकिन वो था तो शैतान ना। अगर वो करीब जाता तो वो जल कर कोयला हो जाता ना। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको रोकिश कर रखी थी, लेकिन उसने लोगों को गलबलाया और इंसानों को लेकर आया वो। तो जब लोगों ने उस जगह को खोदा तो वाकई उन किताबों को वहां मौजूद पाया, और जब उन्हें बाहर निकाला तो शैतान ने कहा कि सुलेमान इंसानों और शैतानों और परिंदों पर इस जादू की वजह से हुकूमत करते थे। ये कहकर शैतान चला गया और बनी इसराइल में ये बात मशहूर हो गई कि सुलेमान जादूगर थे। बनी इसराइल ने उन किताबों को महफूज कर लिया, और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने उन्हीं किताबों की बुनियाद पर आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। चुनाचे इसी के जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वमा कफरा सुलेमानु वलकिन शयातीन कफरू। सुलेमान के मुतालिक कुफ्र की बात नहीं की गई, बल्कि शैतान ही ने कुफ्र किया। और हारूत और मारूत के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमूना मिनहुमा वमा युफर्रिकूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। और उन्होंने इसकी पैरवी की जो बाबिल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया था। वो दोनों फरिश्ते जादू सिखाने से पहले कह देते थे कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, लिहाजा तुम कुफ्र ना करो। चुनाचे लोग उन दोनों से वो जादू सीखते थे जिसके जरिए से वो मर्द और औरत के बीच जुदाई डाल दे, यानी शौहर और बीवी के बीच दूरी पैदा कर दे, तलाक करवा देते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि जब कोई उन दोनों से जादू सीखने के लिए आता तो इसे सख्ती से मना कर देते थे और कहते थे कि हम तो सिर्फ एक आजमाइश है, चुनाचे तुम कुफ्र में ना पड़ो। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि वो दो फरिश्तों को जादू देकर उतारा गया था ताकि वो लोगों को ये आजमाइश सिखा दे जिसे अल्लाह ने अपने बंदों की आजमाइश करना चाही थी। और अल्लाह ने फरिश्तों को ये अहद लिया था, यानी कि अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों से ये अहद लिया कि उस वक्त तक किसी को ये जादू नहीं सिखाएंगे जब तक ये ना कह दे कि हम तो जरिए आजमाइश है, चुनाचे तुम कुफ्र में ना पड़ो। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जो शख्स किसी काहिन या जादूगर के पास जाए तो उसकी बात की तस्दीक करे तो उसने उस दीन शरीयत के साथ कुफ्र किया जिसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। तो दरअसल बात ये है कि जो भी कोई जादू की तरफ जाता है, और लोगों में बात ये आज हमारे उम्मत मुस्लिमा में ज़्यादा मशहूर है कि लोग ये समझते हैं कि जादू अगर किसी पर हो गया है तो
जादू ही उसका तोड़ है। यानी अगर जादू किसी पर हो गया है, सिफली हो गया, काला जादू हो गया, जो कुछ भी तमाम जो हो गया, तो बंधन कर दिया, जो ताले लगा दिए, तो इस तरह से कुछ भी लोगों में जो है मशहूर है, तो उसका तोड़ भी क्या है? जादू है। लेकिन इस्लाम कंप्लीट रिजेक्ट करता है इन सब चीज़ों को। और जिन्होंने ये सब किया और कैसे किया वो सब आपके सामने भी है कि ये जादू कर और जादू कराने वाले कौन होते हैं? शैतान होते हैं। तो जादू करना ये सब क्या है? दरअसल कुफ्र है। जादू की हकीकत नहीं है। जादूगर क्या है? एक शोबदाबाजी। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजज़ात दिए थे। उनको मौजज़ात अल्लाह ताला ने दिए थे। वो जो कुछ भी उनको अल्लाह ताला ने दिया था वो मौजज़ा था। और परिंदे की वो बोली जानते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और उनको अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा क़ुव्वत दी थी कि जिन्नात उनके अंडर में थे। वो जिन्नात पर हुकूमत करते थे सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन लोगों में फितना फैलाने वाला कौन था आपको पता है? कि इब्लीस था। इब्लीस ने वो बात मशहूर कर दी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब कौम सरकश ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सरकशी पे उतारू हो जाती है, तो फिर अल्लाह ताला भी उसको आज़माते भी हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलसल उनकी इस्लाह का भी इंतज़ाम किया, लेकिन कौम ने क्या किया? कौम ने तो सरासर रसूल का इनकार किया और जो इब्लीस की बातों पे लग गए, जो जादू था, जादू वगैरह के पीछे भी लग गए वो इस तरह से। फ़यतअल्लमूना मिन्हु मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। चुनांचे लोग उनसे ऐसा जादू सीखते जिससे मर्द और बीवी में जुदाई डाली जाती। यानी कि जादू इसलिए ज़्यादा सीखा जाता कि औरत और मर्द में जुदाई डाल सके। दरअसल उस ज़माने में अगर किसी का दिल किसी किसी शख्स का दिल किसी औरत पर आ जाता तो कि पर्दा तो उस वक़्त था नहीं। अब वो उससे शादी करना चाहता था। अब शादी तो कर नहीं सकता, वो तो किसी और की बीवी थी ना। तो फिर क्या किया उन लोगों ने? तो उन्होंने जादू का सहारा लिया। जादू करके वो शौहर बीवी में जो है इस तरह से जादू करते थे कि शौहर बीवी का तलाक हो जाता, एक दूसरे से अलग हो जाते और फिर वो जो शख्स जिसका दिल आ गया है जिस औरत पर, फिर वो उससे खुद शादी कर लेता। तो सबसे बड़ा जो खुश होने का जो ज़रिया है इब्लीस का, वो शौहर और बीवी में जुदाई डालना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस 2813 है, जिसमें आता है, इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है और लोगों को गुमराह करने के लिए एक लश्कर रवाना कर देता है। शैतान के दरबार में सबसे ज़्यादा तकर्रुब उसे हासिल होता है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फितना और फसाद में मुब्तला कर दे। मसलन उनमें से एक आकर ये रिपोर्ट देता है कि मैंने ये किया है। इब्लीस कहता है नहीं, तुझसे तो कुछ नहीं बन पड़ा। इसी तरह जब एक और शैतान आकर कहता है, ये रिपोर्ट देता है कि मैंने फला शख्स के पीछे पड़ गया और उस वक्त तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा जब तक उसमें से और उसकी बीवी में जुदाई नहीं डाल दी। इब्लीस खुश होकर उसे अपना मुकर्रब बना लेता है, अपने करीब कर लेता है कि कहता है हाँ वाकई तूने बड़ा ही बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। यानी जादू के जरिए से मियाँ बीवी में जुदाई और तफरीके का सबब है कि उन दोनों में से एक दूसरे को बदसूरत या बद अखलाक या बद मखलूक मालूम होने लगते हैं, या दिल में अदावत और बुग़्ज़ पैदा हो जाती है, या इस तरह की कई बातें पैदा होती हैं जो जुदाई और तफरीके का सबब बन जाती है। यानी कि इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं कि जुदाई और तलाक की वजह भी बन जाती है। तो लोग आज भी इस तरह से सहारा लेते हैं और उस वक्त भी सहारा लेते थे। तो दरअसल जादू करके इंसान फला नहीं पाता है। तो हम आज पढ़ते हैं कि जादूगर के अंदर जो पाई जाने वाली शर्तें हैं वो क्या हैं। जादूगर अपना सब कुछ हत्ता कि अपनी औलाद भी शैतान के हाथों बेच देता है। जो जादूगर होते हैं वो कुरान और दीगर जितनी भी किताबें उन सबको वो बेहुरमती करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो इब्लीस की पूजा पाठ करते हैं। तीसरी चीज़, वो गंदगी लपेटते हैं और गंदगी खाते भी हैं। और ये तमाम चीज़ें जो आपके सामने रखी वो ये सब करते हैं। जादूगरों की अलामत, जादूगर दौरान इलाज समझ में ना आने वाले कलमात भी अदा करते हैं। यानी अरबी के वो अलावा किसी और ज़बान के अल्फाज भी कहते हैं। ऐसा मालिज मरीज़ और उसकी वालिदा का नाम भी पूछते हैं। वो कभी जानवर को ज़िबा करने का और कभी उसका खून मिलने का मुतालबा करता है। ऐसा मालिज मरीज़ को लोगों से अलग थलग रहने वाला खास मशरूबियात पीने और ग़िज़ा खाने का भी कहता है। वो मरीज़ को चंद ग़िज़ायत देता है और मरीज़ से कहता है कि वो उन्हें जलाकर उनकी धूनी ले या उन्हें गले में लटका ले या किसी खास जगह दफन कर दे। जादू के असरात ज़ाहिर होने की अलामत क्या है? अगर किसी पे जादू हुआ है तो उस पे ये असरात ज़ाहिर होंगे। यानी मरीज़ की आंखों का बंद हो जाना, पुतलियों का किसी की तरफ हद से दर्जा घूम जाना, निगाहों का किसी एक नुक्ता पर जम जाना, आंखों का सुर्ख हो जाना, बालों का नोचना, बदन का गैर मुतवाजन हो जाना, चीखना, चिल्लाना, रोना, डर कर छिप जाना। किसी पर अगर जादू होता है तो इसकी अलामत ये है। जादू से बचाव की एहतियाती तदबीर, यानी जिस पर जादू ना हो वो ये एहतमाम करे तो उसके ऊपर जादू असर नहीं करेगा। पहला, तमाम वाजिबात की अदायगी, सुबह शाम के अस्कार, गैर महरमात से मुकम्मल इज्तिनाब, गुनाहों से नफरत और तौबा, कुरान करीम की तिलावत, मसनून दुआएं पढ़ना, सुबह शाम मवदतैन और बताया आपको अस्कार, सुबह शाम के अस्कार पढ़ना, और मदीना की 7 अदद की अजवा खजूर को नोश करना। इरशाद नबी है, जिसने सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खाई उसे उस दिन ना जहर नुकसान पहुंचाएगा और ना जादू। ये बुखारी की हदीस है 5769। मतलब कि हम लोग को इतनी आसानी से ये अजवा खजूर नहीं मिल सकती, हम लोग की पहुंच से ये दूर है अजवा खजूर। तो हम लोग किस चीज़ से हिफाजत कर सकते हैं जादू से? हम सब अपनी अपनी मवदतैन से।
सुबह शाम मवाज़ेतैन पढ़-पढ़ के अपने ऊपर फूँकते रहें, दम करते रहें, बच्चों पर भी, सबके ऊपर। और दरअसल खुसूसन इन जगह पे जब जाए तो तब भी एहतियात करें। जब बैतुल खला या वॉशरूम में दाखिल हो तो उस वक़्त क्या करें? उस वक़्त दुआ पढ़े जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। फिर ताऊज़ यानी कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस आयत को बैतुल खला जाते वक़्त भी पढ़ना है। जब गुस्सा आए तब भी पढ़ना है और जब मुबाशरत कर रहा है इंसान उस वक़्त भी पढ़ना है। किसी शहर या किसी बस्ती में ठहरते वक़्त भी पढ़ना है और नमाज के शुरू में पढ़ना है। कुरान मजीद की तिलावत से पहले पढ़ना है। बुरा ख्वाब देखने पर पढ़ना है। बीमार या तकलीफ के वक़्त भी पढ़ना है। सुबह शाम बिस्तर पे लेटते वक़्त भी, उस वक़्त जब मौत की करीब होता है इंसान और निज़ा की हालत में होता है, उस वक़्त भी अगर कोई आस-पास लोग मौजूद हो तो भी वो भी पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और गधे की आवाज़ को सुनकर भी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। तो तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुरान करीम से हमें इससे इलाज भी मिलता है। अगर किसी पर जादू कर दिया गया है तो उसको कैसे हम बच सकते हैं, उससे कैसे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो जादू का इलाज है, किस तरह से मुमकिन है? तो जादू का इलाज जादू नहीं है। जादू अगर करने कोई गया तो फिर वो तो समझ लीजिए क्या हुआ? वो दीन से बाहर, यानी कि दीन में तो रहेगा लेकिन उसकी हर चीज़ खसारा में हो गई। उसकी नमाज़ नहीं है कबूल, उसकी दुआ नहीं है कबूल और वो उसने शिर्क बिल्लाह किया। क्योंकि इस्लाम रिजेक्ट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इस्लाम एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। यानी एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है कि जादू हम पर किसने किया है या हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, कौन हमारे खानदान में दुश्मन है, किसने ये सब काम किया है। तमाम तरह की एस्ट्रोलॉजी, हॉरोस्कोपी रीडिंग, फॉर्च्यून टेलिंग, ज़ोडिएक साइन, पामस्ट्री, टैरो कार्ड रीडिंग्स, सुपरस्टिशन, ये सब करना सख्त मना है। ये सब करना शिर्क बिल्लाह है। अगर कोई शख्स फॉर्च्यून टेलर के पास जाकर अपने फ्यूचर के बारे में भी कुछ पूछता है तो उसकी 40 दिन की दुआ नहीं कबूल होती है। और आप देखिए हमारे और आपके पास भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। अक्सर मैगज़ीन्स या न्यूज़पेपर में इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। किसी चीज़ की तरफ निगाह उठा के भी ना देखें, क्योंकि 40 दिन की दुआ नहीं कबूल होगी। लोग कहते हैं ना कि मेरी दुआएँ नहीं कबूल होती हैं। तो अमल चेक करें कि कहाँ से क्या गलती हुई है। अब किसी पे अगर जादू हो गया है, तो उसको जादू का इलाज किस तरह से करना है? सबसे पहले तो ये कोशिश की जाए कि जिस जगह जादू हुआ है, उसको पाक साफ किया जाए, यानी जिसके ऊपर भी जादू हुआ है, उसको पाक साफ किया जाए। और अगर किसी चीज़ पर जादू हुआ है, तो उसे निकाल कर ज़ाया कर दें। कोई मशकूक चीज़ या तावीज़ और अगर है, तो उससे नज़र अगर आ रही है, तो उसे ज़ाया कर दें। इसी तरह जादू के इलाज के लिए शरई दम और वज़ाइफ करने चाहिए। इस सिलसिले में ये बात भी मलहूज़ है कि जादू शैतान का काम है। इस वजह से शैतान और उसके कारंदों के शर से बचकर अल्लाह की पनाह में आना चाहिए और इसलिए बताया आप लोग को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द किया जाए। फिर सूरह बकरा की तिलावत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ बल्कि कुरान मजीद की तिलावत किया करो, क्योंकि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं दाखिल होते हैं। सही मुस्लिम 780। सूरह बकरा ज़रूर पढ़ें और सूरह बकरा का खास करके पहली शुरू की 10 आयतें और आखिरी की जो 2 आयतें हैं, वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। जादू का इलाज जो सल्फ़ सालिहीन से मिलता है। बेरी के सब्ज़ पत्ते लेकर उन्हें पत्थर वगैरह से बारीक पीस लें और किसी बड़े बर्तन में रखकर उन पर इतना पानी डालें जिससे गुस्ल भी हो सके और इस पर आयतल कुर्सी, सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और जादू से मुतालिक आयत पढ़ें। जो ये हैं सूरह आराफ आयत नंबर 117, सूरह यूनुस आयत 82, सूरह ताहा आयत 69। फिर इस पानी को के ऊपर दम करें और पढ़ने के बाद पानी पर जो ये पढ़ा है इन आयतों को दम करें और इसका कुछ पानी पी लें और बाकी पानी से गुस्ल कर लें। ये अमल एक से ज़्यादा बार भी किया जा सकता है। इससे हर किस्म के जादुई असरार ज़ाइल हो जाते हैं। और अगर ये सब नहीं मुमकिन है, नहीं पॉसिबल है, तो हमें कुरान से मदद लेनी है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज़ का तोड़ दिया है। सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा आखिरी की 2 आयत, सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयत और सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 3-3 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा पढ़कर दम करें और इस दौरान मुतासरा हिस्सा पर दाएँ हाथ से मलें। यानी कि जो पढ़कर दम करना है, फिर अपने हाथों पर भी फूँकना है और पूरे जिस्म पर हाथ वो फेर लेना है और पानी पर भी फूँक के वो पानी पी लेना है। या फिर ये दुआ पढ़ सकते हैं। मतलब ये तो ज़रूरी है, उसके साथ-साथ अगर ये दुआ पढ़ लें तो और बेहतर है। असअलुल्लाहिल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ीक। ये 7 दफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम करना है। या मरीज़ अगर कोई है तो उसके ऊपर दम करना है और उसके हाथ पर फूँक कर 3 बार पूरे जिस्म पर हाथ फेरना है। और इसी तरह से बहुत सारी दुआएँ मौजूद हैं। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानि व हम्माति व मिन कुल्लि ऐनिल लम्मा। ये दुआ मौजूद है। ये दुआ भी शैतान से और जादू से हिफाज़त की दुआएँ हैं। अगर किसी पे जादू हो गया है, जादू के असरात मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को बताया ना कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह और हो सके तो सूरह बकरा की शुरू कभी जो एक रुकू है वो पढ़ें। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास 3-3 या 11-11 दफ़ा इसको पढ़ें। पानी में दम करें और अपने हाथों पर फूँक के दम करें, पूरे पे बॉडी पे मलें और वो पानी पी लें। डेली 3 दिन, 11 दिन या 7 दिन इसका अमल करें। तो देखिए दरअसल आज उम्मत मुस्लिमा इसलिए तो भटकी है ना, क्योंकि इसकी तरफ नहीं जाते हैं। लोग कुरान से मदद नहीं हासिल करते हैं। किससे मदद हासिल करते हैं? कहते हैं जादू का तोड़ है, जादू है। या इंसान इतना परेशान होता है ना, कहते हैं ना बंदिश कर दी है ना, नाउज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, ऐसा बात कहते हैं कि बंदिशें हो गई हैं। आप सोचिए कि अल्लाह देने वाला है और इतने
एक ज़माने से लोगों को दे रहा है। अगर किसी की औलाद नहीं हो रही है तो किसी की कुव्वत है कि किसी की कोई इंसान बंदिश करा दे, कोई औलाद का होना कोई रोक दे? किसी की कुव्वत है कि किसी की कोई शादी ना करे, कोई बंदिश करा दे? किसी की इतनी कुव्वत है कि किसी की कोई रिज़्क रोज़ी या किसी का दुकान या बिज़नेस चौपट करा दे? कोई नहीं कर सकता है। किसी की इतनी कुव्वत नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहे। किसी पर अगर जादू असर भी होता है, तो ये भी उसमें अल्लाह के हुक्म से असर होता है। बगैर अल्लाह के हुक्म के जादू भी नहीं असर होता है। और जादू अगर किसी पे असर होता है तो इसका मतलब उसकी आज़माइश अल्लाह ताला ले रहे हैं, कि अल्लाह ताला चेक करते हैं कि मेरा बंदा क्या करेगा? कुफ्र कुफ्र इख्तियार करेगा या तौहीद पर आएगा? तो जब भी कभी ऐसी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, कोई भी मुसीबत हो, कभी ना भटके, सिर्फ़ कुरान सुन्नत से रास्ता ले। ये बड़े-बड़े जो लोगों ने अपने बिज़नेस चमका रखे हैं और जो जो कुरान करीम के नंबर्स लिख के देते हैं, और आप देखिए अगर आपको कोई इलाज आयत लिख के कर रहा है और आपसे पैसे नहीं ले रहा है, तो समझ लीजिए कि ठीक है, चलो कर सकते हैं इलाज। लेकिन कोई आपसे पैसे ले रहा है, माल माँग रहा है और आपसे बेइंतहा चीज़ें माँग रहा है, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, फिर आपको वो ये भी दे रहा है कि उसमें ऐसी तावीज़ दे रहा है, तावीज़ में कुछ भी आयत नहीं लिखी है, उसमें क्या लिखा है? नंबर्स लिखे हैं। कहते हैं ये कुरान की ये आयत का ये नंबर है। जबकि कुरान करीम तो नाज़िल किस सूरत में हुआ? वही के ज़रिए से, आयतों के ज़रिए से। आयतों के रूप में नाज़िल हुआ, आयतों की शक्ल में। कोई नंबर की शक्ल में नहीं नाज़िल हुआ कुरान। कभी भी इस गलत तरीके की तरफ मत जाएँ, क्योंकि नहीं मालूम कि सामने वाला इंसान किससे मदद ले रहा है। वो बज़ाहिर तो एक टोपी, दाढ़ी और उसका कुछ भी उसने रंग इख्तियार कर लिया, लेकिन वो अल्लाह जानता है कि वो किस चीज़ से वो पनाह माँग रहा है। यहूदी तो देखने में मुसलमान जैसे लगते हैं, वो भी तो दाढ़ी टोपी रखते हैं, वो भी तो वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो सुलेमान अलैहि सलाम को कुफ्र का कहा ये कुफ्र करते हैं और उनके बारे में बुरी-बुरी बातें लिख ली। पता नहीं क्या-क्या उन्होंने लिख रखा, फेमस कर रखा, तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में सुलेमान अलैहि सलाम को उनके बारे में नाज़िल फरमाई कि सुलेमान अलैहि सलाम ने कुफ्र नहीं किया। और पूरी डिटेल बताई अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। क्योंकि वो बनी इसराइल तो अंबिया को पसंद ही नहीं करते थे ना, और बिल्कुल बेरविश बातें और झूठ बात फैला देते थे बनी इसराइल, और दरअसल उनको आज़माया भी गया था। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म सिवा उस जादू से किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यानी सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के हुक्म से मुराद अल्लाह ताला की फैसला है। हसन बसरी फरमाते हैं कि यहाँ जिसके बारे में अल्लाह ताला चाहता है उस पर उनको मुसल्लत कर देता है, जिसके बारे में वो ना चाहता हो कि उनको मुसल्लत करता, क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। वयतअल्लमूना मा यदुर्रुहुम वला यनफअहुम, और लोग उनसे ऐसा इल्म सीखते हैं जो उनके नुकसान ही पहुंचाता, फायदा नहीं देता। वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरह मिन खलाक, और वो जानते थे जो शख्स ऐसी चीज़ों का खरीदार होगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी उन यहूदियों को ये इल्म भी था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने की बजाय जादू को इख्तियार कर लिया था। जो शख्स ये काम करेगा तो उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। यानी आप लोगों को बताया जैसा कि अभी कि वो यहूद जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बजाय उन्होंने क्या किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया था ना, और जादू करके वो कुएं में डलवा दिया था। तो जो भी ये करने वाला है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, नहीं है उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, क्योंकि तुमने दुनिया का सौदा किया ना, आखिरत को तुमने बेच दिया, तुम्हारा तो आखिरत में कोई हिस्सा ही नहीं है। जब आखिरत में हिस्सा नहीं, ठीक है दुनिया के मजे ले लो, दुनिया में तुम्हें जो भी तुम्हें अख्तियार कर सकते हो करो। अपने शौहरों को किस तरह से आज खवातीन उल्टी सीधी चीजें ला ला के खिला देती हैं, कोई उल्लू का गोश्त खिला रहा है, कोई सिफली कर रहा है कि बस मेरे शौहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, सामने वाला कोई भी वो कुछ की गंदगी खिलाता हो खिलाए, मुझे क्या करना है, बस मेरे शौहर, मेरे ससुराल वाले, मेरे जो है घर वाले मेरे गुलाम बन जाए, मुझे कुछ भी, मेरी आखिरत बर्बाद होती है तो हो जाए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं, मेरी आज दुनिया तो चमक जाए। तो क्या फर्क रह गया हम में और यहूद में, बताएं? यहूद ने भी तो अपना दुनिया का सौदा किया था आखिरत को बेच करके। आज की खवातीन भी यही सौदा करती हैं, आखिरत को बेच दिया, दुनिया को ले लिया। तो दुनिया उनके सामने है ना, क्योंकि उन्होंने आखिरत पे यकीन नहीं किया है। छोटी सी मुश्किल, छोटी सी मुसीबत, छोटी सी परेशानी, ठीक है शौहर बहुत लड़ते हैं, सब्र कर ले, क्या जरूरत है किसी अरे गहरे मौलवियों के चक्कर लगा लगा के, अल्लाह से दुआ करें, दुआओं से तो अल्लाह तकदीर बदल देता है। कोई परेशानी है अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला आजमाता है। कोई भी शौहर इतना बुरा नहीं हो सकता जैसे आसिया रज़ी अल्लाह के शौहर थे, फिरौन था उसका शौहर, उनके शौहर फिरौन थे, इस कदर जुल्म तोड़े उसने आसिया रज़ी अल्लाह पे। कैसा भी शौहर है, कभी भी ना भटके, कभी भी किसी गैरुल्लाह के आस्थानों पे मत जाएं मदद लेने। कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी आजमाइश हो, कैसा भी बिजनेस हो, कैसा भी भूखो इंसान रह रहा है, लेकिन कभी भी इंसान अपना ईमान बेच के ऐसे लोगों के आस्थानों पे मत जाएं, क्योंकि इस्लाम इस चीज को पसंद नहीं करता, जादू टोने और टोटके को। और जादू का इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्नत से बताया है। इससे हमें मदद लेनी है, इससे हमारा अपना हम सब का इलाज करना चाहिए, ना कि किसी गैरुल्लाह के आस्थानों पे जा करके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चा इत्तबा करने वाला, सच्चा पैरोकार करने वाला बना दे, और इस तरह के तमाम फितनों से आज हम सब की हिफाजत फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वला बि'सा मा शरू बिही अनफुसहुम वलौ कानू यअलमून, और जिस चीज़ की औज़ उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला वो तो बहुत बुरी थी, काश ये लोग जानते होते। और अगर वो ईमान लाते और परहेज़गारी अख्तियार कर लेते तो बेशक अल्लाह के यहाँ से बहुत से अच्छा सिला मिलता है, काश कि ये इससे वाकिफ़ होते। यानी ईमान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की बजाय उन्होंने, यानी बनी इसराइल ने जादू को इख्तियार किया, वो बहुत ही बुरी चीज़ है। काश उन्हें इल्म इस चीज़ का इल्म होता जिसकी उन्हें नसीहत की गई है, और अगर ये लोग अल्लाह और उसके रसूल के साथ ईमान लाते और हर हराम चीज़ों से बचते, तो इसका उन्हें उस जादू की निस्बत जिसे उन्होंने अपने लिए पसंद किया बहुत अच्छा सिला मिलता। आयत 103।
वलौ अन्नहुम आमनु वत्तक़ू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैरुन लौ कानू यअलमून। और अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते तो अल्लाह ही ताला की तरफ से बेहतरीन सवाब उन्हें मिलता, अगर ये जानते होते। आयत 104, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तक़ूलू राइना वक़ूलु उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालों, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राइना ना कहा करो, बल्कि उन्ज़ुरना कहा करो, यानी हमारी तरफ देखें और सुनते रहा करो, और काफिरों के लिए तो दर्दनाक अजाब है। तो यहाँ बनी इसराइल की एक और जबरदस्त जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ चाले चलते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भला बुरा कहते थे, अल्फाजों को हेर फेर करके, उसके बारे में यहाँ हाईलाइट किया जा रहा है। तो बनी इसराइल जब यहूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार कर इस तरह से कहते थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्स देते थे, उसमें सब लोग बैठे होते थे, सहाबा बैठे होते थे, और मुनाफिकीन भी होते थे, और ज्यूज भी होते थे, यानी यहूद भी होते थे। क्योंकि बज़ाहिर तो उनको दिखाना था ना कि हम तो अमन के सौदागर हैं, हमें अमन चाहिए, तो वो मजलिस में भी आते थे। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे रॉइना। रॉइना यानी कि आइन के नीचे ज़ेर होता था, रॉइना कहते थे, जिसके माने होते हैं कि हमारी तरफ देखिए, हमारा ख्याल कीजिए और हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। यानी उनको कुछ किसी को पूछना होता ना कि यानी कि टीचर जी सुनिए या हमारी बात सुनिए, इस तरह से, तो वो बड़ी अदब के साथ कहते थे राइना, कि हमारी बात सुनिए, हमारी तरफ देखिए। तो मुतवज्जो करने के लिए, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जो हों और उनकी बात सुने और उनकी बात का जो है, जो भी क्वेश्चन आंसर हो उसको जवाब दे। लेकिन ज्यूज यानी बनी इसराइल यानी यहूद ने अपनी हसद और बुग़्ज़ की वजह से राइना को बदल के रॉइना कर दिया था, यानी आइन के नीचे कसरा या साकिन लगा दिया था, यानी कि रॉइना यानी लंबा करके यानी कि या साकिन या मदिया लगा दिया तो रॉइना हो गया। तो जिसके मीनिंग होते हैं चरवाहा, हमारा चरवाहा, और अहमक वगैरह, माज़ल्ला नऊज़ुबिल्लाह, इस तरह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे, कहते थे रॉइना। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मुसलमानों, ए ईमान वालों, सहाबा को हुक्म दिया कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रॉइना ना कहा करो, बल्कि तुम उनसे कहो उन्जुरना, कि हमारी तरफ देखिए, हमारी बात सुनिए। इस तरह से उनको हुक्म दिया। तो बनी इसराइल ये सब इसलिए करते थे क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलते थे, हसद करते थे, और इस तरह से जब वो सलाम करते थे ना, जैसे कि अल्फाज क्या है, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम यानी कि आप पर सलामती हो, उसकी बजाय वो कहते थे साम अलैकुम, यानी कि तुम पर मौत आ जाए, इस तरह से वो सलाम कहते थे। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से कि तुम राइना नहीं कहा करो, तुम उन्जुर उन्जुर ना कहा करो। तो ये इस तरह से उनकी जो एक बहुत अजीब सी उनकी जो हरकत थी बनी इसराइल की, उस पर तरदीद की गई, और ईमान वालों से कहा गया कि आप राइना ना कहा करें, आप उन्जुर ना कहा करें। जब एक मजलिस, एक बड़ी सी जो मीटिंग से हो रही होती है, तो उसमें जब फिर कुछ लोग राइना नहीं कहेंगे, उन्जुर ना कहेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर उनको भी उन्जुर नहीं कहा कहना पड़ेगा। तो उन्जुर ना का कोई अल्फाज बिगाड़ नहीं है, लेकिन राइना का जो अल्फाज है उसको बिगाड़ दिया था उन लोग ने। इस तरह साम अलैकुम कहते थे ना, साम अलैकुम माने तुम पर मौत वाक़ हो, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह देते थे वालेकुम। और आज उम्मत मुस्लिमा भी अस्सलामु अलैकुम को सही से अदा नहीं करती, साम अलैकुम ही अक्सर हमने सुना है लोगों को साम अलैकुम कहते हैं, यानी कि इसके माने हैं तुम पर मौत वाक़ हो, और अगले ने जवाब में ये भी कह दिया वालेकुम, यानी कि तुम पर भी मौत वाक़ हो। अब देखिए सलामती की बजाय एक दूसरे की मौत की दुआएं दी जा रही है ना, क्यों? क्योंकि तजवीद नहीं मालूम, क्योंकि कुरान को कभी तजवीद से नहीं पढ़ा, हर्फ मायने और मखारिज का इल्म ही नहीं है। बस बचपने से जो माँ बाप ने सिखा दिया है वो सीखा है, और बस उसी की इत्तिबा हो रही है। तो अपनी तजवीज़ ज़रूर सुधारें, और अल्फाज़ों को देखें कि सीन है तो सीन को सीन की तरह से अदा करेंगे, अस्सलामु अलैकुम पढ़ना चाहिए, कहना चाहिए। और अगर ये किसी को कोई पूरा सलाम कह देता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो उसके लिए 40 नेकियां हैं। आप देखिए एक-एक नेकी को इंसान आखिरत में तरसेगा। आयत 105, मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीना अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन मिन रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। ना तो अहले किताब के काफिर और ना मुशरिक चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे रब की कोई भलाई नाजिल हो, और उनके इस हसद से क्या हुआ, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपनी रहमत से खुसूसियत से अता फरमाता है। अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। यानी अहले किताब से मुराद यहाँ पे यहूद हैं, और काफिर और ना मुशरिकीन, यानी कि मुशरिकीन वो इतना ज्यादा मुसलमानों से जलते हैं और इतना ज्यादा हसद रखते हैं कि उनको बर्दाश्त नहीं होता है मुसलमानों को कोई चीज अता कर दे अल्लाह ताला। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया अल्लाह ताला ने, तो उनको बहुत ज्यादा हसद हुआ कि ये हमारे अंदर, यहूद के अंदर क्यों नहीं आए, ये मुसलमानों के अंदर कैसे आ गए, एक उम्मी जो जमात थी उसके अंदर कैसे आ गए। तो हसद की वजह से वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की, सिर्फ हसद की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं की, इसलिए सिर्फ हसद की वजह से। हसद और हसद और हसद, बड़े-बड़े जो गुनाह हुए वो हसद। इब्लीस जो जन्नत से निकाला गया वो किस वजह से? हसद। हसद की मीनिंग क्या है? हसद की मीनिंग है, आप देखिए मुआशरे में किसी को कोई चीज़ मिलती होती है ना, तो लोग सब खुश होते हैं। अगर हसद किसी को कब होती है? जब किसी को कोई चीज़ नियामत मिली, और नियामत मिलने वाले के बारे में हम ये सोचे कि अच्छा उसको वो नियामत मिली है, अल्लाह करे उससे वो नियामत छिन जाए। नियामत छिन जाने के लिए तमन्ना करने लगना, दरअसल ये क्या है? ये हसद है। हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे कोई आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। तो हसद बहुत बड़ी और बहुत बुरी बीमारी है, इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। हसद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की हिफाज़त फरमाए। और दीन में काफ़ी लोग एक-दूसरे से हसद करते हैं। देखिए फ़ज़ाइल तो अल्लाह ताला से, अल्लाह की फ़ज़ीलत तो हम माँग सकते हैं, लेकिन हम हसद किसी से नहीं कर सकते हैं, और उनकी तरक्की हो और आगे बढ़े और फले-फूले, कभी भी किसी से हमें हसद नहीं करना चाहिए।
किसी को कोई मकान मिला, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे दे। अल्लाह ताला से अल्लाह का फजल मांगी, क्योंकि अल्लाह के खजाने बहुत वसी हैं। अल्लाह के खजाने से जितना भी अल्लाह दे कभी कम नहीं होता है। लेकिन इंसान ना बहुत बखील है। वो दूसरों से हसद करने की वजह से दूसरे के सामने वाले की चीजें बस चाहता है कि छिन जाए, या जादू टोना करा देता है, या तबाह बर्बाद हो जाए। क्यों? क्योंकि उसको हसद है, जलन है, बुग़्ज़ है। सेम यही बनी इसराइल का रवैया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और सेम आज उम्मत मुस्लिमा का एक दूसरे के साथ भी है। इसी तरह रवैया है। कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, कोई किसी को पहनता नहीं देख सकता। जलन और हसद और बस बुग़्ज़ और बस इसी तरह से जिंदगी गुजर रही है। काम तो था मुसलमानों के कांधों में जिम्मेदारी बहुत बड़ी डाली गई है कि उम्मत मुस्लिमा अल्लाह के पैगामात को पहुंचाए। और आज आप देखिए, निगाह उठा के देखें, इतनी बड़ी तादाद है हिंदुस्तान की, उसके बाद भी उनकी कोशिशें नहीं कम है। वो रात दिन कोशिशें कर रहे हैं, अपनी किताबें बांट रहे हैं, रास्ते रोक रोक के आओ लो पढ़ो। और देखिए मुसलमान क्या है, मुसलमान बैठे हैं चुपचाप अपने अपने घरों में। जो काम अल्लाह ने हमको दिया था कि हम करें, तबलीग करें, और जिसके बारे में हमारी पकड़ भी हो सकती है, लेकिन वो काम हम नहीं कर रहे। हमने तो सोच रखा है हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है, हमारी तो बस जिम्मेदारी फैमिली, और फैमिली की जिम्मेदारी है बस बच्चों की जिम्मेदारी है, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी है। ये तो काम उलिमाओं का है। उलिमाओं का काम है, उम्मत वस्त का भी काम है। उम्मत वस्त आप और हम सब है। हम सबको ये काम फरीजा अंजाम देना है। गैर मुस्लिमों को देखा मैंने, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें, शायद भगवत गीता या रामायण वगैरह जो भी उनकी हो, सादी सी लैंग्वेज में वो लोगों को बांट रहे हैं। कहाँ? पब्लिक प्लेस में बांट रहे हैं। आओ पढ़ो, मुसलमानों को खास करके दे रहे हैं। आप देखिए, तभी तो बड़ा अफसोस लगता है ना कि कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जिनको नॉलेज नहीं है दीन की, और वो हिंदू हुए चले जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबके ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और सूरह बकरा आयत नंबर 106, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस आयत को हम मंसूख कर दें या भुला दें, इससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये सुन्नत रही है कि वो मुख्तलिफ ज़माने में और मुख्तलिफ हालत की मुनासिबत से शरीयत के फ़रई अहकाम में तब्दीली फरमाते हैं। सबकी शरीयतें, जितनी भी शरीयतें आईं, सबकी मुख्तलिफ थी, लेकिन दीन सबका एक ही था। दीन के बुनियादी अकायद यानी तौहीद, रिसालत और आखिरत हर दौर में एक रहे हैं। लेकिन जो अमली अहकाम यानी कि शरीयतें हैं, वो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे, तो उनमें से बाज़ अहकामात ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में तब्दील कर दिए गए, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मज़ीद तब्दीलियाँ वाक़ई हुईं। जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उन्हीं के बेटे और बेटियों की आपस में शादी हो जाया करती थी, और वो उनके लिए हलाल कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे हराम कर दिया गया। यानी भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये हलाल था, लेकिन बाद में क्या हो गया, इसको हराम करार दिया गया। और कश्ती से बाहर आने के बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के लिए तमाम हैवानात यानी तमाम जानवरों को खाना अल्लाह ताला ने हलाल करार दे दिया था, लेकिन बाद में उनमें से बाज़ को हराम करार दे दिया गया। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए दो बहनों से निकाह हलाल करार दे दिया गया था, लेकिन अहकाम तौरात और उसकी बाद की शरीयतों में इसे हराम करार दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया था अपने बेटे को ज़िबा करे, मगर ज़िबा करने से पहले ही इस हुक्म की मनसूख कर दिया गया था। बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो तमाम उन लोगों को कत्ल करे जिन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था, लेकिन फिर इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में नबूवत अता हुई, आपकी दावत को मुख्तलिफ मराहिलों से गुजरना था। मुसलमानों को तरह तरह के मसाइल दरपेश थे, इसीलिए अल्लाह ताला ने अहकाम में तदरीज, ग्रेजुअलिटी यानी धीरे धीरे इख्तियार फरमाई। यानी कोई अहकाम अल्लाह ताला ने कहा आप इससे दूर रहें, फिर दूसरा हुक्म आया कि आप उसके नमाज के करीब मत जाएं, फिर तीसरा हुक्म क्या आया कि आपके ऊपर ये चीज़ हराम कर दी गई। जैसे शराब के बारे में 3 अहकामात हैं। शराब के 3 हुक्म मिलते हैं कि शराब के बारे में 3 हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए। 2 में कहा कि धीरे धीरे आप उसको छोड़ दें, यानी कि उसमें शराब की हालत में आप नमाज के करीब मत जाए, नमाज में नहीं आए। फिर आखिरी में जो सबसे फाइनली हुक्म नाजिल हुआ, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन सब के लिए हराम कर दिया था कि जो चीज़ इंसान के घुट्टियों में पड़ी होती है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको तदरीज यानी कि धीरे धीरे उनको उससे रोका। एकदम से अगर उनके लिए वो हुक्म नाजिल फरमा देते कि आपको ये चीज़ नहीं पीनी है, तो फिर उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती। तो जो किसी के इंसान की चीज़ घुट्टियों में पड़ी है, गुनाह शराब है और कोई भी चीज़ जैसे तमाम सूद वगैरह, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके लिए बातदरीज अहकामात नाजिल फरमाए। किसी वक्त जैसे हुक्म किया गया था और बाद में दूसरा हुक्म आ गया, जैसे कि क़िबले का, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो उनका क़िबला किधर हुआ था? 16-17 महीने उन्होंने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर फाइनली क़िबला किधर हो गया रुख? खाने काबा की तरफ हो गया। तो पहला हुक्म मनसूख हो गया। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वक्त-वक्त पर लोगों के रवैये को और लोगों की चीज़ों को और परेशानियों को सामने रखते हुए अल्लाह तबारक तआला ने जो अहकामात कुरान करीम में नाज़िल फरमाए हैं, वो तदरीज यानी कि धीरे-धीरे, ग्रेजुअलिटी यानी कि धीरे-धीरे नाज़िल फरमाए हैं। काम तो वही होना है, लेकिन थोड़ा-सा धीरे-धीरे। ननसख जो अल्फाज इस आयत में आया है, तो ननसख नस्ख से है, नून सीन खौ से है। नस्ख के लुग़वी मायने हैं मनसूख करने के हैं। नस्ख के शरई माने एक हुक्म बदलकर दूसरा हुक्म नाजिल करना है। यानी नस्ख के लुग़वी माने हैं हटाना और मिटाना। इस आयत में नस्ख से मुराद
किसी हुक्म को ज़ायल यानी मनसूख करना, ख़त्म करना और हुक्म के बजाय दूसरा हुक्म ले आना। तो नस्ख के लुग़वी मायने हैं हटाना या मिटाना, और नस्ख के इस्तिलाह में मायने हैं हुक्म को, एक हुक्म को दूसरे हुक्म से बदल देना। कुरान में बहुत सी ऐसी आयत है जो मनसूख है, यानी आयत तो मौजूद है कुरान में, लेकिन उनका हुक्म बाकी नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हम उनसे बेहतर ले आते हैं। कोई भी आयत अल्लाह ताला मनसूख करते हैं या भुला देते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बेहतर आयत ले आते हैं जो कुरान में मौजूद है। कि मनसूख आयतें हैं और उनका यानी कि वो आयत मौजूद है, लेकिन अब उनका हुक्म बाकी नहीं रहा है, उसकी जगह अल्लाह ताला ने उससे बेहतर आयत या हुक्म नाजिल फरमाया है। यहूद नस्ख के अहकाम के कायल नहीं थे। उनकी दलील ये है कि इस तरह नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की सिफत इल्म का नुक्स साबित होता है। इस दलील की बुनियाद पर वो किसी नई शरीयत के कायल नहीं है, ना शरीयत ईसा के और ना शरीयत मोहम्मदी के। उनके इस दलील के जवाब में ये आयत नाजिल हुई और जवाब दिया गया है कि हम जब भी किसी आयत को मनसूख करते हैं या उसे भुला देते हैं, तो उस जैसी उससे बेहतर आयत लाते हैं। ये नस्ख 3 किस्म का होता है। एक तो मुत्तलकन नस्ख, यानी हुक्म एक को बदल कर दूसरा हुक्म नाजिल कर दिया गया। दूसरा है कि नस्ख माल तिलावा, यानी पहले हुक्म के अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद रखे गए हैं, उनकी तिलावत होती है, लेकिन दूसरा हुक्म भी जो बाद में नाजिल किया गया कुरान में मौजूद है। यानी नासिख और मनसूख दोनों आयतें कुरान में मौजूद है। नस्ख की एक तीसरी किस्म ये है कि उनकी तिलावत मनसूख कर दी गई है, यानी कुरान करीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें शामिल नहीं किया। तो आपने शामिल नहीं किया कि अल्लाह का हुक्म था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करते थे, अल्लाह ने उनको जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से हुक्म दिया, तो उन्होंने उन आयत को शामिल नहीं किया, लेकिन उनका हुक्म बाकी है। यानी कि कुछ आयतें ऐसी हैं कुरान में नाजिल हुई थी, ना कुरान में आयत मौजूद है, ना उनका कहीं भी हुक्म है, लेकिन वो हदीस से वो पता चलती हैं। जैसे आयत रजम है, जैसे संगसार करना, यानी शादीशुदा मर्द और औरत को अगर जिना का इर्तिकाब वो करेंगे तो उनको संगसार कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो हुक्म है वो हदीस से पता चलते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं और उनसे हाँ, तो हम भुलवा देते हैं उनका। इसका मतलब ये है कि उसका हुक्म और तिलावत दोनों उठा लिए गए हैं, गोया कि हमने उसे भुला दिया गया है। तो कुछ अहकामात अल्लाह ताला ने कुरान करीम में नाजिल फरमाए थे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनको भुलवा दिया लोगों को। लेकिन कुछ आयतें आज भी कुरान करीम में मौजूद हैं जो तिलावत तो की जाती हैं, लेकिन वो उनका हुक्म बाकी नहीं है, उनका हुक्म अब मनसूख है, क्योंकि उसकी जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे बेहतर आयत कुरान करीम में ही नाजिल फरमा चुके हैं। तो बहुत सी आयत है और काफ़ी लंबी लिस्ट है, तो अगर वो आयत लेके हम इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा आप लोगों का लेसन और लंबा भी हो जाएगा। तो बस आप समझ लीजिए कुरान करीम में जो आयत है, कुछ नासिख है, कुछ मनसूख है। कुछ आयत है, उनका उनको हम तिलावत तो करते हैं, लेकिन अब उनका हुक्म अब बाकी नहीं है। उनका हुक्म किसी दूसरी आयत ने मनसूख कर दिया, यानी कि अब उसका हुक्म दूसरी कोई आयत ही कुरान करीम की है, उसका हुक्म लिया जाता है। पहले वाली आयत का हुक्म अब बाकी नहीं रहा है। और इसी तरह कुछ नासिख और मनसूख आयत इस तरह से भी हैं जो ना कुरान में आयत मौजूद है, ना उनका हुक्म मौजूद है, लेकिन वो हदीस से पता चलती है उनका हुक्म क्या है। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आयतों को नुनसिहा भुलवा दिया है, लोगों को मालूम भी नहीं है। और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से भी कुछ आयतें हैं उसको मिटा दिया है। तो अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह जो चाहे करे। लेकिन बनी इसराइल क्या करते थे, वो इस कुरान करीम के बारे में एतराज़ात करते थे, और इससे पहले की भी जो किताबें थी वो इस पर एतराज़ात करते थे। वो कहते थे कि जब हमारे मूसा पर ये कुरान यानी तौरात नाजिल हुआ, तो इसको मनसूख करके ये इंजील कैसे उतारा गया। फिर जब इंजील उतारा गया और इंजील के बाद जब कुरान मजीद आया, तो फिर उनका एतराज़ात यही था कि तौरात मनसूख किया गया, हुक्म ख़त्म कर दिया, इंजील का हुक्म मनसूख कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो अब ये कुरान करीम क्यों नाजिल फरमाया गया। तो दरअसल बात ये है कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई रसूल मबूस करते हैं, तो उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी शरीयत यानी कि अहकामात भी अल्लाह ताला नाज़िल फरमाते हैं। हर दौर यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक बहुत सारे अंबिया आए, जिनके जो है ना शरीयतें मुख्तलिफ थी, लेकिन सबका दीन तो एक ही था, यानी कि तौहीद, रिसालत और आखिरत, सबने यही पैगामात पहुँचाया। और अहकाम यानी कि तरीक़ा कैसे इख्तियार करना है नमाज का, या कौन सा गुनाह है, कौन सा नहीं गुनाह है, शराब पीना गुनाह है कि नहीं गुनाह है, या जो जो ज़िना करते हैं उनकी सज़ा क्या है, या रोज़े में जो रुख़्सत दी जाती है, जो बूढ़े जो शख्स हैं या जो बीमार हैं उनको जो रुख़्सत दी गई है, इस तरह के जो अहकामात नाज़िल फरमाए गए, उनके बारे में आयतें नासिख़ और मनसूख़ हैं। तो इस चीज़ पर यहूद बहुत एतराज़ात करते थे, तो उनकी ही बातों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत में जवाब दिया है कि दरअसल मनसूख तो बहुत कुछ होता रहा है पहले। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी शरीयतें मुख्तलिफ थी, दीन तो सबका एक ही था। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहन भाई की शादी हो जाती थी, बाद में वो चीज़ बेशर्मी हुई, हराम कर दी गई, अल्लाह ताला ने हराम करार दिया। आयत 107, अलम तअलम अन्नल्लाह लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या तुझे इल्म नहीं कि ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह ही है, अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा वली है और ना कोई तुम्हारा मददगार है। यानी यहूद तौरात को नाकाबिल नस्ख करार देते थे, और कुरान पर भी उन्होंने बाज़ अहकामात के मनसूख होने की वजह से एतराज़ात किया था। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस बात को रद्द फरमाया और कहा, ज़मीन और आसमान की बादशाही तो उसी के हाथ में है, वो जो मुनासिब समझे वो करे। जिस वक्त जो हुक्म उसकी मसलिहात और हिकमत के मुताबिक हुआ उसने नाफिज कर दिया, और जिसे वो उसने चाहा उसको
मिटा दिया, हटा दिया, मनसूख कर दिया। ये उसकी कुदरत ही है, ये उसकी कुदरत का एक मुजाहिरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहे जो करे। अलम तालम अन्न अल्लाह, क्या तुम नहीं जानते कि इल्म, कि तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन और आसमान का ही मालिक है? जब सब कुछ अल्लाह ही का है, तो हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह का चलेगा। वो जो चाहे नासिख और मनसूख करे, वो जो चाहे उसको नून से हाँ मिटा दे या भुला दे। सब कुछ अल्लाह ही का है। इसमें तुम्हें कोई एतराज़ात करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसके बारे में जो है इस तरह से सवालात करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दरअसल फिर जो यहूद थे ना, हर चीज़ पे उनको एतराज़ात थी ना, जब वो उनकी जो सिफ़ात थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी किताबों में, उन्होंने उसको नहीं, उसको तस्दीक की, यानी कि उनकी जो किताब में तौरात में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ थे उसकी तस्दीक उन्होंने नहीं की, और ना वो उन पर ईमान लाए बनी इसराइल। उसके बाद उन्होंने इस कुरान करीम में एतराज़ात किए, और कुरान करीम ने भी उन सब के लोगों का जवाब भी वक्त-वक्त पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वक्त और टाइम के हिसाब से आयतों को नाज़िल करके फरमाते रहे, यानी कि उन्हीं के लोगों का जवाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है। आयत 108, अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवाअस सबील। क्या तुमने अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो कि उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटक जाता है। तो ये आयत, ये किताब यहूदियों को भी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की बजाय तरह-तरह के मुतालबे पेश करते थे, और साथ ही मुसलमानों को भी सबक दिया जा रहा है कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बावजूद यहूद मूसा से नामकूल और गैर ज़रूरी सवालात और मुतालबे करते रहते थे, तुम ऐसा ना करना। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिजूल के सवालात मत करना, या कसरती सवालात मत करना, क्योंकि ये सूरह बकरा है, और आप सब और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कसरती सवाल से क्या हुआ था। बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से बेइंतहा सवाल किए, और कसरती सवाल की वजह से उनके काम मुश्किल हो गए थे। और अहले किताब दरअसल मुसलमानों के दिलों में शक और शुबह डालकर कहते थे, जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करो फला फला के बारे में, यानी कि उन्हीं के जरिए से वो उनको सवाल करवाते थे। बनी इसराइल या यहूद मुसलमानों को, जो नए नए मुसलमान हुए थे, उनके दिलों में शक्कू को शुबात डालते थे और कहते थे, जाके अपने रसूल से फला फला के बारे में सवाल करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन सबको अलर्ट कर दिया। उन सब से खिताब है, यहूदियों से भी खिताब है और खुद मुसलमानों से भी यहाँ खिताब है। क्या तुम अपने रसूल से यही पूछना चाहते हो कि उससे पहले जैसे मूसा अलैहि सलाम से पूछा गया था? सुनो, ईमान को कुफ्र के बदले, ईमान को कुफ्र से बदलने वाला सीधी राह से भटका दिया जाता है, भटक जाता है। तो इससे बात यही पता चलती है, इससे हम सब के लिए इबरत यही है कि फिजूल के सवालात हमें नहीं करना है ना। अक्सर देखा जाता है कि लोग सवालात और बार-बार सवालात करते हैं। भरी मजलिस में कोई इंसान अगर कोई किसी को तालीम दे रहा होता है, तो ऐसे मुश्किल सवालात करे जाते हैं कि देखिए ज़रा इनका इल्म कितना है ना? या कुछ लोग इस तरह से भी सवालात करते हैं, फ़िक़्ही मसले मसाइल के बारे में सवालात करते हैं, ये जानने के लिए कि ये किस मसलक की हैं, किस फ़िरक़े की हैं। तो इस तरह से सवालात से मना किया जा रहा है। सहाबा को भी रोका गया, क्योंकि सहाबा देखिए जो अशरा मुबश्शिरीन थे, उनकी बात और थी। तो मदीना में बहुत सारे सहाबा थे, ढेरों। जो भी ईमान लाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करता था, वो सहाबा कहलाए। तो कुछ सहाबा जो नए-नए ईमान लाए थे और वो दीन शरीयत में पहले-पहले शुरू-शुरू में नए-नए में दाखिल हुए थे, तो वो कसरत सवाल करते थे। कभी-कभी मजलिस में बैठे होते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता था। उस वक़्त भी जो नए-नए ईमान लाने वाले सहाबा थे, वो सवाल करते थे। तो अल्लाह तबारक तआला ने कसरत सवाल से मना कर दिया गया है, और ख़ास करके जब उनके ऊपर वही नाज़िल हो रही है, उस वक़्त तो और ही मना कर दिया गया सख्ती से। वो हम लोग उस आयत के बारे में आगे इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो सवालात ज़्यादा नहीं करना है, सवालात इंसान को इसलिए करना चाहिए ताकि उसकी यही नियत हो कि हम इल्म सीख सकें, हमारा इल्म में इज़ाफ़ा हो और हमारी जहालत दूर हो जाए, ये नियत होनी चाहिए। नियत ये नहीं होनी चाहिए कि हमारा दिल शुकों में पड़ा हुआ है, शकूक में पड़ा हुआ है, और हम सामने वाले को नीचा कर दें या ऊँचा कर दें, इस तरह से सवालात नहीं कर रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे इस आयत में सवालात मना किया है, यानी कसरत से सवालात नहीं करना है। ना मुसलमानों को, ना सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ना कोई उलेमाए दीन से, जो लोग होते हैं उनको। तो आप देखिए कि इल्म अगर नहीं है, तो वो तो पूछने के लिए इंसान जाएगा ना, लेकिन भरी मजलिस में भरे जो सब लोग बैठे इकट्ठे हैं, और सामने वाले से ऐसा सवाल इस नियत से पूछना कि हम इनको नीचा कर दें, ये ना इस सवाल के जवाब नहीं बता पाएँगे, और ये अभी बिल्कुल इनका नीचा कर दें, या इस तरह से इनको बिल्कुल झुका दें, इस तरह से लोग टेढ़पन से सवाल करते हैं, कजी तलाशने के लिए सवाल करते हैं, या तरह-तरह के सवालात करके लोगों को कन्फ्यूज़ करते हैं। इस्लाम के बारे में उल्टे-सीधे सवालात करके लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो कसरती सवाल से या कजी वाले सवाल से मना किया गया है। आयत 109, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक्कु फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। उन अहले किताब के अक्सर लोग बावजूद हक वाज़े हो जाने के महज हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें भी ईमान से हटा देना चाहते हैं। तुम भी माफ़ करो और छोड़ दो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लाए। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने हासिदों से
डील करने के डील करने के लिए हमको एक 3 स्टेप फार्मूला दिया है। पहला, उन्हें माफ कर दो। दूसरा, उनकी हरकतों को नजरअंदाज कर दो। तीसरा, अल्लाह के फैसले का इंतजार करो। इस फार्मूले की बुनियाद इस अमल पर है। इस फार्मूले की बुनियाद इस उसूल पर है कि अल्लाह हर चीज पर हमेशा और हर हाल में कुदरत रखने वाला है। किसी हासिद के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अल्लाह की इजाजत के बगैर हमको कुछ नुकसान पहुंचा सके। तो इससे पता ये चलता है कि जब कोई हासिद हसद पर उतर आए तो फिर मुकाबला करने की बजाय माफ कर दो, इग्नोर कर दो, क्योंकि वो मजबूर है, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई आपके साथ ज्यादती करे और अल्लाह उसको ना पकड़े। अल्लाह पकड़ेगा, लेकिन उसकी पकड़ का एक वक्त और एक तरीका। फिलहाल तुम क्या करो, यानी कि अल्लाह सुब्हान तआला की पकड़ करने का एक तरीका है, एक वक्त मुकर्रर है। लेकिन फौरन नहीं अल्लाह ताला किसी को पकड़ लेता है। अगर किसी ने हमको जुल्म किया और उसको दूसरे दिन ही अल्लाह ताला पकड़ ले, उसको खत्म कर दे, उसको अजाब में मुब्तला कर दे, फौरन ही अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आती है। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। तो हमें क्या करना है? फाफू वसफहू, दरगुजर करो, मुतमईन रहो कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। हम इंसानों से जल्द इंतकाम और बदले पर क्यों उतर आते हैं? इंसान सारे के सारे फौरन ही इंतकाम और बदले पर क्यों उतर आते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला बदला ले सकता है। जिसको ये याद होगा कि अल्लाह बदला लेने में काफी है, वो सब्र से अपना काम करता रहता है और बाकी मामला अल्लाह पर छोड़ देता है। और अपने अखलाक को बुरा नहीं बनाना चाहिए हम सबको, और ना ही बदतमीजी पे और बद इखलाकी का रवैया अख्तियार करना चाहिए। तो जब भी कोई हसद करे, कोई ताने मारे, कोई जले और झुलसे और जो है, तो आप देखिए कि ये दीन का जो रास्ता होता है ना, दरअसल ये ऐसा रास्ता होता है कि इस रास्ते पर कोई सुकून से नहीं चल सकता है। इतनी मुखालिफत करते हैं कि वो आपको सुकून से इस कुरान के रास्ते पे चलने नहीं देंगे। कभी भी आपके रास्तों पे लोग फूल नहीं बिछाएंगे, कांटे बिछाएंगे। तरह तरह से आपको आर्ग्यूमेंट करेंगे, ताने मारेंगे, तंबिया करेंगे। तो हसद करने वाले भी लोग तमाम तरह के तंज और ताने और तंबीह और तरह तरह की बातें, मजाक मजाक में सब कुछ कह डालेंगे। तो क्या करना है उनको? कोई किसी ने ऐसी बहुत बड़ी बात कह दी जो हमारे दिल पे चोट लग गई, तो फिर क्या करना है? इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला हुआ था। जानते बूझते भी अहले मक्का ने और यहूद ने और मुनाफिकों ने कितना उनके साथ हसद किया था। हसद की बिना पर सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाए और हसद करने की वजह से उनकी तस्दीक नहीं की। साफ साफ लिखा था किताबों में। मुशरिकीन भी जान गए थे कि हाँ, ये रसूल सच्चे हैं, लेकिन तब भी नहीं ईमान लाए, जिद और हसद और बुग़्ज़ की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किसी के साथ बुरा सलूक करते थे? किसी के साथ उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी थी? कुछ नहीं। सिर्फ उन्होंने तो क्या पैगाम पहुंचाया था? एक अल्लाह की इबादत करना और बस उनकी रसूल की इत्तिबा करना था, यही तो था। सिंपल सा साधा सा फार्मूला था, लेकिन इस छोटे से सादे सिंपल फार्मूला लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो आज भी ऐसे ही होता है कि कोई भी अगर ऐसा कोई शख्स जो पहले गुनाह में मुलव्वस होता है, फिर जब उसको कुरान से हिदायत मिलती है, वो कुरान का रास्ता इख्तियार करता है, दीन और ईमान का रास्ता इख्तियार करता है, वही साथी, वही दोस्त, वही रिश्तेदार जो उसके साथ गुनाह करते थे, अब उसको उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि कैसे ये हम सब कुछ छोड़ करके दीन के रास्ते से लग गई। तो तमाम तरह की वही दोस्त जो पहले गुनाहों पे साथ देते थे, अब जब दीन के रास्ते पे चलेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, ताने मारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तमाम तरह की बातें कहेंगे, क्योंकि वो हसद करते हैं। तो फिर कोई भी ऐसी बात कहे, कोई भी ऐसी अल्फाजों से आपको तलवारें चला, तो जबानें लोगों की ऐसी होती है कि तलवार, बंदूक, छुरी सब फेल हो जाता है। इंसान जबान से ऐसे अल्फाज अदा कर देता है कि लोग लोग जो होते हैं इतना ज्यादा हर्ट होते हैं कि सालों साल उनके अल्फाज उनको याद रहते हैं। बताइए सच कह रहे हैं कि नहीं? तो बस ऐसे कोई अल्फाज कोई कहे और खास करके दीन के बारे में कोई आपको तंबीह करे, ताने दे और कोई भी मजाक उड़ाए, तो फिर क्या करना है? फाफू वसफो, दरगुजर करना है। तो उन्हें माफ कर देना है, क्योंकि वो लाइल में है ना। जब भी कभी ऐसा हो तो ये सोचे कि कभी हम भी तो ऐसी ही थी ना, कभी हम भी तो ऐसे ही नाफरमान थे ना। अल्लाह से उनकी हिदायत के लिए दुआ करनी है और उनकी हरकतों को नजरअंदाज करना है और अल्लाह ताला जो हुक्म लाएगा उसके फैसले का इंतजार करना है। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम जो इल्म वाले हैं, जो इल्म हासिल करने वाले हैं, उन सब से खिताब है, तमाम मुसलमानों से खिताब है कि तुमसे ये अहले किताब के अक्सर जो लोग हैं, बावजूद तुम्हारे हक होने के, वाज़ेह हो जाने के, तुमसे सिर्फ और सिर्फ हसद और बुग़्ज़ की बिना पर तुम्हें तुम्हें ईमान से भी हटाना चाहते हैं। तो ईमान से हटाना चाहते हैं, अहले किताब मुसलमानों को ईमान से हटाना चाहते हैं, क्योंकि ना वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि कोई मुसलमान है, कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इत्तिबा करने वाला है ना। क्योंकि आप देखिए कि दुश्मनी कहाँ से चली आ रही है, आपसे और हमसे दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। और आज उम्मत पर अफसोस होता है कि जो जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कि कह दीजिए कि तुम अल्लाह से अगर मोहब्बत करते हो तो तुम्हें किसकी इत्तिबा करनी है? मेरी इत्तिबा करनी है। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि आज उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की इत्तिबा कर रही है। वो दुश्मन जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जुल्म उठाए, कोई कमी नहीं छोड़ी, जान से मारने के लिए उनको जहर की वाली जो खैबर में बकरी दी गई, बकरी में जहर मिला दिया यहूदियों ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज हमें उनके बनाए हुए हर चीज़ बहुत भाती है। उनके बनाए हुए त्योहार, यही नसारा नसारा के ये सब त्योहार हमको बहुत अच्छे लगते हैं, उनके तौर तरीके हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत हमारा दिल चाहता है कि धीरे-धीरे कि वो हम भी क्रिश्चियन या हम यहूदी बन जाएँ। बाज़ मुसलमान तो इस कदर ऐसे चीज़ों से मोहब्बत करते हैं कि उन्हें अपने मुसलमान होने पे इंसल्ट लगती है और वो सोचते हैं काश हम यही यहूदी नसारा होते तो वो बन भी जाते हैं।
जिसकी जो ललक होती है, जो ख्वाहिश होती है, अल्लाह तबारक ताला उसको उसी की तरफ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने अपने अहले ईमान बंदों को और अहले किताब में से कुफ़ार के रास्ते पर चलने से मना फरमाया है। यानी कि अल्लाह तबारक ताला अपने अहले ईमान वाले बंदों को अहले किताब में से और कुफ़ार यानी काफ़िरों के रास्ते पर चलने से मना फरमा रहे हैं कि ये अपने अंदरूनी और बाहरी में हर तरह से तुमसे इस कदर दुश्मनी करते हैं, इतनी शदीद दुश्मनी रखते हैं और बहुत ज़्यादा तुमसे ये हसद रखते हैं। हालाँकि उन्हें मुसलमानों और उनके नबी की फ़ज़ीलत के बारे में खूब इल्म है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपने अहले ईमान बंदों को हुक्म दिया है कि वो अफ़ू और दरगुज़र से काम लें, हत्ता कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी फ़तेह और नुसरत से सरफ़राज़ फरमा दे। आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी खूबसूरत आयत नाज़िल फरमाई है ना, जो कहते हैं कि कुरान आतंकवाद सिखाता है, तो उनको ऐसी आयतें नहीं दिखती हैं, जहाँ पे अल्लाह ने कहा है कि सामने वाला तुमसे कैसे भी हसद रखे, कैसे भी दुश्मनी रखे, कुछ भी तुम्हारा साथ तुम्हारे रवैया करे, लेकिन तुम्हें क्या करना है? तुम माफ़ कर दो, तुम उनको छोड़ दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कोई हुक्म आ जाए, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई हुक्म नाज़िल हो, तुम्हें कुछ नहीं करने को कहा जा रहा है, तुम तो बस उनको माफ़ कर दो और उनको छोड़ दो, उनको जाने दो। हुँ? कुरान मजीद में उनको ऐसी आयतें नहीं दिखती हैं, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने ईमान वालों को हुक्म दे रहे हैं कि माफ़ कर दो, जाने दो, छोड़ दो। क्योंकि उनको तो कुरान में कमियाँ निकाली हैं, क्योंकि उनको तो वो हसद है ना, उनको तो बुग़्ज़ है, मुसलमानों से मुसलमान होने का हसद है, बुग़्ज़ है, जलते हैं कि मुसलमान मुसलमान कैसे हैं? मुसलमान को सारे के सारे मुसलमानों को हम उनके दीन से फेर ही दें और उनको उनके दीन से हटा ही दें, उनकी तो सारी कोशिशें यही हैं। लेकिन अफ़सोस और डर अफ़सोस कि आज मुसलमानों ने क्या किया है, उन्हीं की चीज़ें, उन्हीं की कल्चर, उन्हीं के पहनावे, उन्हीं के रस्म-व-रिवाज, उन्हीं के सब चीज़, तौर-तरीके सब इख्तियार कर लिए हैं। आप देखें कि आज मुसलमान मुसलमान नहीं रहा है, मुसलमान हिंदू की रस्में अपनाता है, मुसलमान नसारा की रस्में, नसारा के तौर-तरीके अपनाता है, मुसलमान यहूद का उठना-बैठने का तरीका इख्तियार करता है। मुसलमान तो बस खिचड़ी बन गया है, असल मुसलमान तो रहा ही नहीं है ना। 60 से 70% आज हर मुसलमान कुफ़ार है। सिर्फ नमाज और हज कर लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना मुसलमान होता है। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम इस्लाम में दाखिल हो पूरे के पूरे। तो मुसलमान की इस ज़िंदगी में उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है, उसके रब की मर्ज़ी चलती है। लेकिन आज देखिए सर उठा के, आज तो नमाज़ पढ़ने वाले ही बहुत कम मिलेंगे, रोज़े रखने वाले ही बहुत कम मिलेंगे और वो दुनिया के धोखे में ऐसे जी रहे हैं कि जैसे उन्हें हज़ार बरस जीना है, उनको कभी मरना ही नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 110 में फरमाते हैं वअक़ीमुस्सलाता व आतू ज़काता वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। तुम नमाज़ें कायम रखो, तुम ज़कात देते रहो और जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे, सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ सबके सबको अहले किताब को भी हुक्म दिया, ईमान ले आए और वो नमाज़ कायम करे, वो ज़कात दे और सारे मुसलमान यानी यहूदियों को इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हसद और दुश्मनी थी, उसकी वजह से वो मुसलमानों को दीन इस्लाम से फेरने की पूरी कोशिश और जद्दोजहद करते रहते थे। मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम सब्र करो, दरगुज़र से काम लेते रहो और उनके यानी इस्लाम के अहकामात और फ़राइज़ को बजा लाओ, जिनका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। तुम नमाज़ें कायम करो, तुम ज़कात अदा करो और जो भलाई, जो खैर तुम भेजोगे, अल्लाह के यहाँ तुम उसको पालोगे। कि इंसान जो भी कोई नेकी का काम करता है, अल्लाह ताला उसको ले आएगा सामने। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान नेकी करे और वो उसको ना पाए। तो वो छोटी-सी राई के दाने के बराबर भी जो इसने नेकी की होगी, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको ले आएगा सामने। और जो किसी ने छोटी-सी राई के दाने के बराबर भी कोई गुनाह किया होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको भी सामने ले आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि तुम नमाज़ें कायम करो। नमाज़ में अकामत करो यानी कि नमाज़ें कायम करो और ज़कात अदा करते रहा करो और जो कुछ भलाई तुमने करोगे ना, वो आगे पालोगे। सब कुछ अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को खूब देख रहा है। यानी कि तुम कैसे किस तरह से अमाल अपने कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, दुनिया वालों को दिखाने के लिए कर रहे हो, माँ-बाप के डर से कर रहे हो कि नमाज़ सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ रहे हो, तो अल्लाह ताला तो खूब जानने वाला है, तुम्हारी कैसी नीयतें हैं। तो नमाज़ जब भी पढ़े तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ें। अपनी नियतों को खालिस कर लें, जब वज़ू करें उससे पहले अपनी नियत को खालिस कर लेनी। हम नमाज़ किस लिए पढ़ रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह की मोहब्बत मिले, अल्लाह का तकवा इख्तियार हो जाए। रोज़े भी इसलिए रखना है कि हमें माँ-बाप के डर से नहीं, मुआशरे के डर से नहीं, सब रख रहे हैं इसलिए हमें रोज़े नहीं रखना है। ये अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम रोज़ा रख रहे हैं। क्योंकि नियतों को बिगाड़ कौन डालता है? इब्लीस। इब्लीस हमारे खून, ब्लड यानी कि पूरे जिस्म में खून की तरह रवानी करता है, वसवसे ला देता है। हमेशा वो नियत में मिलावट करवा देता है। तो अपनी नियतों को झाड़ा करें। जैसे कपड़े को झाड़ा जाता है ना, उसमें से धूल-मिट्टी झाड़ दी जाती है, इसी तरह अपने आप को भी झाड़ देना है कि नहीं, हमारी हर कोशिश, हमारे हर अच्छे अमाल, हमारी हर नमाज़, हमारी हर कुर्बानी, हमारी हर ज़कात, हमारा हर रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए है। सिर्फ़ अल्लाह के लिए। और जो भलाई इंसान करेगा ना, वो सब पालेगा। जो लगता है कि आज हम ज़कात दे के मेरा माल छोटा-सा हो गया, कम हो गया, 1 लाख में से 2,500 निकल गए, 2,500 के तो अगर हमने कोई नोज़ रिंग ले ली होती तो वाह! क्या कहने थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, लेकिन तुम जो भलाई करोगे ना, इसको पालोगे। ये तो तुम्हारे पर फ़र्ज़ है। अगर तुमने नहीं दिया, तो इसका तो बुरा अंजाम है ज़कात ना देने वालों का। लेकिन अगर तुम अच्छे से इख़लास से अल्लाह की खातिर इसको सर अंजाम दोगे, तो तुम अल्लाह के इसको पालोगे। तुम्हारे हर अमाल को, तुम्हारे हर किए हुए अमाल को खूब देख रहा है। आयत 111
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود نصارہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. یہاں اہل کتاب کے اس غرور اور فریب نفس کو پھر بیان کیا جا رہا ہے جس میں وہ مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں کس قدر فریب یعنی دھوکے میں تھے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ صرف انہی کی ملت کے لوگ جنت میں جائیں گے. جیسا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تکذیب کی اور فرمایا کہ وہ تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دے گا، اور اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دیتا جیسے انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ یہ صرف چند روز کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے اور وہ جلدی وہاں سے جنت میں واپس چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان سے اس دعوے کی بھی تردید فرمائی اور اسی طرح سے وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے تل کا امانی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے اس دعووں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا یہ ان کی خواہشات ہیں. تل کا امانی ہوں، یہ تو ان لوگوں کی صرف خواہشیں ہیں جو انہوں نے ناحق اللہ تعالیٰ سے قائم کر رکھی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا ہے نا، گناہ کر کے پھر وہ کیا سوچتا ہے کہ اللہ ہم کو جنت میں دے دے گا، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے گا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ کیسے پاسبل ہے نا؟ ایک انسان شرک کر رہا ہے، زندگی پر اس نے گناہ کے کام کیے، تو پھر یہ اور وہ سوچ کیا اس کی ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے تل کامانی ہوں، یہ تو تمہاری خواہشات ہیں، یہ تو ان کی خواہشات ہے، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو انسان کو اپنی مرضی سے اپنے خواہش سے اپنے آپ کے فیصلے نہیں اچھے سے گمان کر لینے ہیں، اور ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. لیکن جو دھوکے میں، جو فریب میں، جو زن اور گمان، جو انسان کی تھاٹس تھی نا، وہ جیسے بنی اسرائیل کی جو تھاٹس تھی کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے جو حد چہتے ہیں، تو ہم کو نا آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. وہ کہتے تھے کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا کوئی جائے گا ہی نہیں، یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں. تل کامانی ہوں، یہ تو صرف ان کی آرزویں. تو ان سے کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو کوئی ایسی دلیل ہے تو پیش کرو کہ تمہاری کتابوں میں ایسا کچھ لکھا ہو جس میں یہی لکھا ہو کہ صرف نصارہ اور یہود جنت میں چلے جائیں گے اور کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. کوئی لکھا ہوا، کوئی لکھاوٹ، کوئی انبیاء کا قول لے کر کے تو آؤ تم، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا کوئی چیز ہوتی تو وہ پیش کرتے. تو اسی طرح سے آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. امت مسلمہ سمجھتی ہے ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم چاہے جتنی بدعتیں کر لیں، ہم چاہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کے ہندو رسم و رواج اختیار کر لیں، ہم ناچ گانا بجانا اور بالکل جیسے تھرکا جاتا ہے میوزک کے گانوں پہ وہ تھرک لے، ہم جتنے بھی چاہے یوٹیوب، انسٹا اور جتنی بھی چیزیں اس پہ ہم اپنے ناچ گانے کی اور تھرکنے کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور رہے ہیں، ہم کو معاف کر دیں گے نا. تو یہ تو کیا ہے؟ یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں، ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہی ہے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے نا، کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے میں ایک قیدی کیسے رہتا ہے؟ ایک لگژری لائف جیتا ہے کیا؟ ناچ گانا ڈانس تھرک تھرک کے کرتا ہے کیا؟ وہ تو جو قید خانے کے جو مین جو اس کے حوالدار ہوتے ہیں، جو بھی ان کے انڈر میں جن کے ہوتے ہیں، قیدی تو وہی کرتا ہے جو جیلر کہتا ہے. جیلر ان سے کہتا ہے کہ آپ اس ٹائم کھائیں تو کھاتا ہے، آپ اس ٹائم اٹھے وہ اس ٹائم اٹھتا ہے، آپ اس ٹائم آپ کو یہ کام کرنے چلنا ہے تو آپ یہ کام کرنے چلیں گے. وہ جیلر کے کہنے پہ سارے کام کرتا ہے. تو یہ دنیا ہم سب کے لیے قید خانہ ہے. ہمیں وہی کرنا ہوگا جو ہمارے رب نے کہا ہے. ہماری زندگی میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلنے والی، اللہ کی مرضی چلے گی. پھر آخرت میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ہمارے لیے اجر رکھا ہے. پھر آخرت میں ان کافروں کے لیے قید خانہ ہے اور مومنوں کے لیے تو جنت ہے. تو آج اس زندگی میں اللہ کی مرضی سے ہم اپنی زندگی گزار لیں، آخرت میں ہم اپنی مرضی سے جی لیں گے. لیکن یہود نصارہ نے کیا کیا تھا؟ وہ ایک زن اور گمان اور تھاٹس میں جیتے تھے. اور اکثریت آج مسلمانوں کی بھی افسوس یہی ہوتا ہے کہ اسی خالی سوچ میں وہ جی رہی ہے. ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم قرآن نہیں سمجھتے ہیں، توحید کیا ہے ہم نہیں جانیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون، چلو ٹھیک ہے نام کافی ہے، نام تو الحمدللہ کافی سب لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے خواہش ہے کہ ہم جو ہے نا آب کوثر سے ہمیں پانی پینا نصیب ہو جائے، بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں. تو جو بھی کوئی بدعت کرے گا اور اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، توبہ نہیں کی، تو پھر حوض کوثر سے ان کو ہٹا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا. اسی طرح سے مسلمانوں کی بھی آج بڑی بڑی لمبی لمبی سوچ سوچتے تو بہت کچھ، لیکن کام تو ان یہود اور نصارہ کو بھی فیل کر دیا ہے. آج مسلمانوں کے عمل ایسے ہو گئے کہ یہود نصارہ بھی ان کے آگے فیل ہیں. مسلمان پہ آج ترس آتا ہے کہ مسلمان کیسی امت ہے نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ سر اٹھا کے دیکھیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اگر یہ نماز پڑھتے ہوتے تو مسجدیں پوری بھری ہوئی ہوتی. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے. جاڑا پڑا نمازیں گول، گرمی پڑی نمازیں گول، بارش ہوئی نمازیں گول. تو کیا پوچھ نہیں ہوگی کیا؟ اسی لیے دنیا میں آئے تھے خالی دنیا کے لیے سب کچھ کرنے. آپ دیکھیں کہ بزنس کی کوئی بھی بات آتی ہے، آفس کی کوئی بات آتی ہے، انسان ہر حال میں دوڑ جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی پکار آتی ہے، نماز کی پکار آتی ہے، تو بس ٹالو، چھوڑو، اللہ غفور الرحیم ہے. کیونکہ پکڑ نہیں ہوگی. آیت 112 بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا پورا بدلہ دے گا. اس پر تو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. بلا من اسلم وجهه لله، اس کے معنی ہے کہ وہ محض اللہ کی رضا کے لیے سارے اچھے اچھے کام کرے. اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرے، اپنے دین کے جو عبادت کے جتنے بھی کام ہیں.
اور اللہ کی رضا کی خاطر اگر انسان دنیاوی کام بھی کرے گا تو اس میں بھی اس کو فائدے ہی فائدے ہیں کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلا، عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسرا، عمل درست شریعت کے مطابق ہو، اور اگر عمل خالص تو ہو مگر شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر بھی شرف قبولیت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں میرا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح مسلم 1718، یہ حدیث میں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلا، عمل جب ہمارا قبول ہوگا تو اللہ کی خاطر ہو، اور دوسرا اس کی شرط یہ کہ وہ عمل کس کے مطابق ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے۔ اگر ہم ایمان تو لے آئے، ہم توحید پہ ڈٹ گئے، لیکن ہم موسیٰ اور ہارون اور عیسیٰ ان کی شریعت کو فالو کریں گے تو وہ عمل رد ٹوکری میں جائے گا، ڈسٹ بن میں جانے والا ہے۔ یا پھر انسان عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، لیکن اگر اس نے ملاوٹ کر دی، خالص اللہ کی خاطر نہیں ہوا، وہ دکھاوے والا ہو گیا، وہ ریاکاری والا ہو گیا، تو پھر وہ بھی تب بھی کیا ہے؟ عمل برباد ہو گئے۔ تو عمل کی ہر عمل الصالحات کی قبول ہونے کے 2 شرطیں ہیں۔ پہلا، خالص اللہ کے لیے، دوسرا طریقہ رسول یعنی کہ سنت کے مطابق ہو، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیں گے۔ اور اگر اس کے خلاف ہے، جیسے کہ آج لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں نا، بدعت کیا ہے؟ دین میں ہر وہ نئی چیز جو سنت سے بھی نہ اس کو پتہ چلتا ہو، نہ سنت میں کہیں بھی ہو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہیں بھی کیا ہو، لیکن لوگ اس لیے کرنے لگے کہ میرے بزرگ کہتے تھے کہ آپ کریں، میرے بزرگ کہتے تھے، بڑے بوڑھے خاندان والے کہہ کے گئے کہ آپ کریں، تیجا کریں، 40واں کریں، سیوں کریں، چنے لیں، باٹے سب کو پہنچائیں، اور پھر یہ سب طرح کی بدعت جو ایجاد ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ کس نے کرا؟ کس نے پڑھا؟ کوئی سیرت میں ہے کہ 1.25 مرتبہ چنے پہ آپ پڑھیں اور باٹے اور سب کو پہنچائیں؟ ٹھیک ہے، آپ یوں نارمل دنوں میں خوب چنے کھائیں بھونے میں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ دین کا سمجھ کے جو کام کرا تو یہ دراصل کیا ہے؟ جو شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو ہمیشہ اس حدیث کو یاد رکھیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم نہیں ہے اور وہ انسان اگر وہ کام کر رہا ہے تو مردود ہے۔ مردود کی میننگ جانتے ہیں؟ مردود کس کو کہا گیا تھا؟ ابلیس کو بھی کہا گیا نا مردود، دھتکارا ہوا، اس کا ہر کام رد ہے، ہر چیز اس کی رد کر دی گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل الصالحات کرنے والا، خالص اللہ کی خاطر ہر کام کرنے والا بنا دے، اور ہم سب کے عمل اور ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔